Otro para hablarme, José. Ah, dale. बदली मोटरोला Yeah, just now. He would be joining in another couple of minutes. ओके फाइन। तो हम सब लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। कल का जो फीडबैक फॉर्म दिया था उसमें अराउंड 115 लोगों ने ही भरा है। बाकी लोग प्लीज अपना फीडबैक फॉर्म भरते जाइए जो हमें यूजफुल रहेगा आगे के सेशंस के लिए। हम लोग एक फीडबैक ले रहे हैं एट द एंड ऑफ द सेशन कि समझने के लिए कि कैसे रहा सेशन उनके लिए। हम लोग फिर जब हमारा मेन ये सबमिट होगा तब भी ये लोग क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, रोज का जो अपना हम लोग जैसे बोल रहे हैं बूट कैंप के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, पूछना है तो हैंड रेज कीजिए और वहां पे फिर हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपके आंसर हो सकते हैं। ओके, थोड़ा रेडी रहिए, अगर हमें एक 6:30 के बाद भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा सेशन तो सब लोग। तो किटकैट भी अंदर डाल दे। Hello everyone. हेलो सर। Hello everyone. सो गुड इवनिंग, हम लोग शुरू करते हैं। Exactly. यस, Please. सो Sorry for गुड इवनिंग technical सबको। problem हमारा था। हमारे साथ आज हम हमारे स्पीकर और हमारे मॉडरेटर मोगिली विजेंद्र सर ज्वाइन हुए हैं। मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ और फिर विजेंद्र सर आगे का सेशन उज्जवल सर के साथ लेके जाएंगे। सो मोगिली विजेंद्र ही इज अ social entrepreneurs, founders, and leadership team. He plays the leadership role for the Bala Vikas for as a mentor for social entrepreneurs. He has worked as a navigator to transition of startups to building entrepreneurial journey for entrepreneurs with over a decade of experience across social enterprises, NGOs, government linked initiatives, and ecosystem institutions.
He supports leaders in their growth, in governance, in challenges they are facing in their entrepreneurial journey. He is also focusing and mentoring the when any questions comes for the leadership on the roles in making decisions, and also on the entrepreneurial journey to take the institutions to the next level. So I welcome Vijender sir for the session to moderate with the Ujjwal sir, and I hand over a session to the Vijender sir. Sir, you can. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. I'm here. I could figure out Professor. Yes. Hi. Hi. So, thank you, Josna, for a good introduction. And good evening to everyone. So, a warm welcome for day 3 of YE Summit, Youth Entrepreneurship Summit. And I think you all already had 2 days of good learnings. So, I am Mugli Vijender, as Madam said already. So, before I jump into this, I acknowledge the organizers, YE Summit organizing team. Sincerely appreciate and not just inviting me, but basically creating that spaces for learning is very, very important. So aspiring meets, these kind of meetings actually give a lot of clarity. So I really appreciate YE Summit organizing team, the whole team, for this YE Summit, and then asking me to join and then moderate this session. However, today's topic is not just kind of a random topic, but it is foundational at the same time very practical. So that is what I completely believe. Foundational and transformational topic with the services versus product models, understanding opportunities and risks, and scalability of the micro enterprises. So basically, this is what the very critical situation of every micro enterprise goes through. So please, everybody, whoever is thinking in these lines, whoever is there outline, there as a micro entrepreneur, please be attentive and then listen to every careful word what Ujjwal sir is going to share with you, share with us, all of us. So please be clear. And very importantly, why this is all important is many enterprises always fail, but they are not failing because their commitment is weak or their ideas are weak. One of the major reason, they don't know which kind of a model suits at which stage. That is precisely what Ujjwal sir is going to talk today. In his throughout his experience, he has been a wonderful person, and he has helped lot many institutions to develop together. So develop into a very big scale. So that is what he's going to address today. And then please be open, keep your ears very open, and then let's see how it goes. And very coming to our sir, thank you, sir, for coming here and then joining us to taking out your time. You have been very you have been traveling across last 2 days, so 2 3 days. So thank you again, sir, Ujjwal sir. And where I wanted to mention about Ujjwal sir, he's a pro vice chancellor for Techno India University, and then previously he was a vice president for Washington University of Science and Technology. So that is what his background comes from. And Chaudhary sir actually comes with a very strong academic rigor, and at the same time academic rigor with a global exposure. And his deep insight is not just about academic only. He has an enterprise model intersect. So he's going to give you the theory plus entrepreneurship practice ka grounded realities into you. So keep your, what I would suggest is, whoever is having questions, keep your chat box open and then keep your questions there so that I can take it up, and then later I can put it across to Ujjwal sir to make sure your questions are not missed. And today's session is going to be first 40-50 minutes. Sir is going to talk about the entire topic, what today's theme is. And then we will have 20 to 30 minutes of few questions picked up by you and then picked up by me. So I'll try to put your questions into Ujjwal sir bucket so that he'll answer that. And then in the last, we'll just
cut short in the 2-3 minutes what we have learned and then how we can take it forward today. Yeah. And with that context, sir, I would like to invite Ujjwal sir. Please take it over and then let's see. Thank you. Thank Thank you, you, sir. Vijender ji. It's a very interesting way of beginning. I'm sure that we'll have a useful time. Yes. Before I go ahead, I know my audience, so I would perhaps mix Hindi and English together. I think that would be better. है ना? सही है ना? हिंदी और अंग्रेजी Yes, मिक्स sir. करके बात करेंगे. बस ज्योत्सना जी ने उंगली दिखा दिया ऐसा. फिर बढ़िया अभी रहेगा. विजिता ने भी उंगली दिखा दिया. सबने दिखा दिया. क्या बात है. तो चलो हिंदी इंग्लिश मिला के बात करेंगे. पहली बात. दूसरी बात, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर प्रेशर लेके नहीं सोचने का, बहुत आनंद से सोचने का. बिकॉज आप कुछ रॉ मटेरियल कहीं से ला रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या आप अपने को स्किल करके सर्विस दे रहे हैं, और ये प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिस पे आपने 10 रुपया लगाया, फाइनली आपके पास 17, 18, 20 आना चाहिए. तो ये एक जो पूरा स्ट्रेटेजी है, ये तो हैप्पीनेस है. यू आर क्रिएटिंग वैल्यू. एक इंसान में एक स्किल लाके, वो स्किल यू आर गिविंग टू अदर्स, यू आर क्रिएटिंग वैल्यू विद इन यू. और एक रॉ मटेरियल लाके, एक ऑर्डिनरी पेपर खरीद के, कटिंग करके, नोटबुक्स बना के, उसमें प्रिंटिंग करके स्कूल कॉलेज का नाम आप कॉलेज को जाके बेच रहे हो, और जो ओरिजिनल मटेरियल आपने खरीदा था 8 रुपया, बेचते वक्त वो 16 रुपया है. सो यू आर क्रिएटिंग वैल्यू. सो दोज हु क्रिएट वैल्यू आर टू बी सैल्यूटेड. Those who create value are to be celebrated, cherished. So first of all, अगर आप 50,000 रुपया लेके भी बिजनेस में उतरते हो ना, तो मैं आपको सलाम देता हूं. मैं नौकर हूं एक यूनिवर्सिटी का, आप अपना मालिक हो. आप अपना मालिक हो. सो आई एम नॉट आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं. आई एम रियली मीनिंग व्हाट आई एम सेइंग. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि ये जो नौकरी 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 का जो हवा लग गया ना दुनिया भर में, अब तुम्हारी एज में तो मैं जा नहीं सकता. 60 हो गया है. देखो विजेंद्र सर कितने हैंडसम एंड यंग है, मैं तो अभी उतना नहीं हो सकता. सो इसलिए मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी नहीं है. सो यू, इट इज योर टाइम एंड यू शुड थिंक कि मैं अपना इनकम खड़ा करूंगा फर्म बिजनेस के साथ, और साथ साथ आई विल ऑल्सो इंश्योर 4 आदमी और कमाए. The thing that I'm doing should give job to 5 or 6 people more, जिसके पास आज उतना नॉलेज, उतना रिसोर्स, उतना कनेक्शन नहीं है कि वो अपना बिजनेस करे. बट एक बात समझो, इफ यू हैव ट्रेन्ड 5 पीपल इन योर वर्क, और कल को वो 5 अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में जाके 5 और बिजनेस किया, you are to be really, really saluted. You must always want your team members to grow so much that they start their own business if they want. And you get new people again, no problem. Don't suffer from any inhibition. कोई किसी का गुलाम नहीं है, ना आप हो, ना मैं हूं, ना हमारे साथ जो काम करते हैं वो है. So everyone has the right to go out. So मैं पहले ये बात को रखना चाहूंगा कि entrepreneurship is to be celebrated. हमारे देश की एक कमजोरी है कि हमने ब्रिटिश टाइम से इंग्लिश एजुकेशन और जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम लोग बड़े हुए हैं, दैट हैज टॉट अस ऑल पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू गेट समहाउ सम जॉब. जरूरी नहीं है, बट जो जॉब कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको अभी जरूरत है समाज में. बट अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजिंगली शुड गो इनटू स्मॉल, मीडियम, बिग बिजनेस, बिकॉज इवन द लार्ज कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़े जो कंपनीज है, वो भी अभी स्टाफ मॉडल, जॉब मॉडल से निकल रहे हैं. सब पार्टनरशिप मॉडल में आ रहे हैं. तुम मुझे ये सामान दो, इसके अगेंस्ट में ये पैसा लो, दैट्स ऑल. पहले एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता, समझो प्रेसिडेंट, उसके नीचे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर. ये होता था पहले. अधिकतर कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में अब ये खत्म कर रहे हैं. देयर इज अ मैनेजर and there are vendors. The manager negotiates with vendors. Vendors are small business people themselves. So it is through a set of large number of vendors or small business people that people are doing business now. Job concept जा रहा है. MBA
जॉब चर्निंग मशीन नहीं होके एमबीए शुड बी बिजनेस चर्निंग मशीन, enterprise churning machine. Every MBA should have entrepreneurship as the basic education and not just memorizing management principles and rules. आप लोगों के साथ बात करते हुए अच्छा लगा। मैं एक पीपीटी यूज करूंगा। जस्ट नाउ आई एम इन देहरादून, a beautiful place. Actually, I'm in Haridwar, not Dehradun. I landed in Dehradun airport, but I'm in Haridwar, and very beautiful place. I'm just now. और यहाँ से बैठ के आप सबसे कनेक्शन हो पा रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग। 152, वाओ, 152 on the call, and they will be perhaps from several cities and states of India, surely largely from Maharashtra and Telangana, but there will be other states, Andhra, Karnataka and all. Really, I appreciate you joining, and so many people from different places have joined. It's great effort that Josna, Sanyalji, Mathuji and every others people are doing, and with scholars like Inderji and others have also come in. Please mute your machines. Whenever you have to ask questions later, unmuting can be done. More than that, you can use the chat box, but keep your machine muted. And if you're moving around, then keep your video also off. If you're sitting silent, जैसा रेखा जी बैठी हुई है, शांति से विजेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो फाइन है. Otherwise, if you're moving around, keep the video off. So ये बेसिक्स बातें करने के बाद लेट्स गो टू द होल कॉन्सेप्ट. सर्विस या मॉडल प्रोडक्ट, क्या करना है, बिजनेस किस चीज का करना है. सो मैं एक छोटा सा पीपीटी बनाया हूँ, बहुत ज्यादा हेवी नहीं कर रहा हूँ. तो उस पीपीटी को सामने रख के आप लोग देख पा रहे हो मेरा पीपीटी? Yes. Okay, good. Now let me make it full screen, and this is full screen now. And let me reduce the window of the guests. 1 minute. Yes. So goods and services. समझ लो 1 से 3 लाख पैसे का माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करना है. वो 1 लाख वाला बिजनेस 50 हजार से भी शुरू हो सकता है बाय द वे. लेकिन मैं कह रहा हूं कि रफली 1 से 3 लाख के बीच माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करना है. दैट विच सर्वाइव्स, जिंदा रहता है, अर्न्स, कमाता है, स्केल्स, बड़ा होता है. तो आप 2 वर्ड जानते हो, इंक्यूबेशन, एक्सीलरेशन. इंक्यूबेशन शुरू करना, एक्सीलरेशन बड़ा बनना. सो मनी इज नॉट योर फर्स्ट कैपिटल. क्या फर्स्ट कैपिटल है? पढ़िए, पढ़ते पढ़ते जाइए. एक्चुअली मोबाइल में मत अटेंड कीजिए. मोबाइल में पढ़ना संभव नहीं है, प्रॉपरली देखना संभव नहीं है. ज्यादातर लोग ऑलवेज इस तरह के बूट कैंप को लैपटॉप में अटेंड कीजिए. लैपटॉप में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं प्रॉपरली. मनी आपका पहला कैपिटल नहीं है. आपका पहला कैपिटल है आपका अपना टाइम, अवेलेबिलिटी. अगर आपका नॉलेज है, स्किल्स है, कोई चीज का काम जानते हैं, तो आपका टाइम सबसे बड़ा पॉइंट है. लेकिन आप टाइम क्या करते हो? 3 घंटा तो स्क्रॉलिंग करके बिता देते हो, वेस्ट करते हो. अधिकतर लोग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, 3 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो मैं वेस्ट करता ही हूँ दिन में. आधा घंटा, 45 मिनट. तो ये पहला पॉइंट हमें अपने साथ लड़ना होगा. 6 घंटे से ज्यादा सोने का नहीं. आधा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल का वो जनरल इंटरनेट और ये सब चीज देखना, वो आधा 1 घंटे रील वील जो भी है उसी के अंदर रखने का. जितना मिनिमम ट्रैवल चाहिए उतना. जो काम घर से हो सकता है वो घर से कीजिए. ट्रैवल मिनिमाइज कीजिए. कुछ कुछ चीजों के लिए ट्रैवल जरूरी है, मानता हूं, लेकिन हम अनावश्यक ट्रैवल बहुत करते हैं. दोस्तों के साथ दोस्ती को मेंटेन करने के नाम पे टाइम पास बहुत करते हैं. फोकस कीजिए. इस तरह के बूट कैंप अटेंड कीजिए. हैदराबाद में आइए. यहाँ जितने 170-50 लोग हैं, वो ज्योत्सना जी से बात कीजिए किस सिस्टम में आना है. हैदराबाद में आइए, देखिए आपके सामने 500 छोटे बिजनेसमैन अपना काम रखेंगे, बातें करेंगे. अमेरिका से लेकर और देशों, 2-3 देशों से लेकर और भारत के 15 प्रदेशों से लोग आएंगे. ये देखना जरूरी है. जो काम मैं करना चाहता हूं वो और लोग कैसे कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई. सो पहला पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी. आपका टाइम का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है. दूसरा, ट्रस्ट, रेपुटेशन. तो आपका कोई एक फील्ड में रेपुटेशन होना चाहिए. अभी जो शुरू कर रहा है जिंदगी, उसका रेपुटेशन पहले से कहां से होगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं.
स्किल, एक काम होना चाहिए जो आप बाकी लोगों से अच्छा जानते हैं। मुझे एक खाली बड़ा बिल्डिंग दे दो और उसके 1 साल का खर्चा दे दो, मैं उस खाली बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी बना सकता हूँ या कॉलेज तो कम से कम बना सकता हूँ। तो कोई एक चीज होनी चाहिए जो आपको अच्छी तरह आती है। मेरे फील्ड के टॉपिक दे दो, एक कमरे में 4 दिन बंद कर दो, दोपहर और रात का नॉर्मल खाना फिर सिर्फ दे दो, मैं वहां बैठ के 25 आर्टिकल लिखकर जो अधिकतर जगहों में जहां छापने लायक जगह में जाना है वो मैं तैयार कर सकता हूँ। ये मेरी छोटी सी स्किल है। आपका स्किल आईटी का हो सकता है, आपका स्किल फल से कुछ निकाल कर एक अच्छा चीज बनाना, जूस बनाना हो सकता है, आपका स्किल बहुत अच्छे क्वालिटी के अगरबत्ती बनाना हो सकता है, आपका स्किल बहुत अच्छे क्वालिटी का साबुन बनाना हो सकता है, आपका स्किल हो सकता है अच्छे स्पाइसेस को पीस के तैयार करके उसको प्यूरिफाई करके या साफ करके उसकी अच्छी पैकेजिंग करके मार्केट में जो चल रहा है केमिकल मिक्स स्पाइस, उसके सामने एक नॉन केमिकल अच्छी क्वालिटी की या ऑर्गेनिक स्पाइसेस का प्रोडक्ट लाना हो सकता है। आपकी क्वालिटी बहुत अच्छा पढ़ाना हो सकता है तो आप ट्यूशन कर सकते हो। आपकी क्वालिटी जबरदस्त फैशन डिजाइन हो सकता है। सो पॉइंट है आपका एक रेपुटेशन, एक स्किल का होना जरूरी है। अभी शुरू में लोग नहीं जानेंगे, लेकिन जो पहला 10 आदमी आपका सर्विस लेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा, वो आपका ट्रस्ट बनेगा। तो इसलिए अरे किसी को भी ऑर्डर आया कैसे भी मैनेज करके मैनेज कर दो, अच्छा बुरा, ये एटीट्यूड में बिजनेस नहीं होगा। जो पहला ऑर्डर आता है वो भगवान है। पहला क्या, जब भी ऑर्डर को सक्सेसफुली टाइम के अंदर देना और ओवर प्रॉमिस नहीं करना। जो चीज आप नहीं रख सकते, जो काम 4 दिन लगता है, सामने वाला बोल रहा है 2 दिन में कर दो यार, तुमको ज्यादा पैसा देंगे, नहीं लेने का, तो बोलने का है देखो ये काम 4 दिन का ही है, मैं 2 दिन में करूंगा तो इसकी क्वालिटी खराब होगी। सो दैट्स वाई टाइम, ट्रस्ट, स्किल और डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी दूर तक जा सकते हो। काम शुरू नहीं किया और सोच रहे हो मैं एक्सपोर्ट करूंगा अफ्रीका में, अरे पहले अपने घर के बाजू में एक्सपोर्ट करो, अपने घर के सामने में उसको ले जाओ, अपने शहर में उसको पहले ले जाओ, महाराष्ट्र तक ले जाओ, अरे अफ्रीका में जरूर जाओगे, लेकिन पहले डिस्ट्रीब्यूशन अपने सराउंडिंग में सोचिए। सो डोंट थिंक हवा में बातें, बी प्रैक्टिकल। योर टाइम, योर ट्रस्ट, पीपल, द रेपुटेशन दैट यू हैव, दैट इज ट्रस्ट, स्किल और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 आपका असली कैपिटल है, पैसा बाद में है। सर्विस और प्रोडक्ट में डिफरेंट करते हैं। सर्विस में क्या करते हो, अपना टाइम बेचते हो, एक स्किल बेचते हो और लोग आप पे भरोसा करते हैं, रिलायबिलिटी बेचते हो। जब एक डॉक्टर क्लिनिक में आपको देखता है तो आपको आधा घंटा दे रहा है, डॉक्टरी का स्किल से काम कर रहा है और आप उसको रिलायबल या विश्वास करते हो, तो वो एक सर्विस हुआ, मेडिकल सर्विस। एक टीचर जब वो कोचिंग या स्कूल चलाते हैं तो एक स्किल हुआ, सर्विस हुआ। एक एक जो रिपेयर करता है गाड़ी, वो गाड़ी को जब देते हो तो जो बंदा उस पर काम कर रहा है 2 घंटे से, वो टाइम दे रहा है, मैकेनिक का उसका स्किल है, और आपको विश्वास है वो गाड़ी को खराब नहीं करेगा, अच्छा करके देगा। तो विश्वास को कमाना पड़ता है। तो टाइम, स्किल और रिलायबिलिटी, कंसल्टिंग, ब्यूटी बिजनेस, रिपेयर बिजनेस, ये सारे कुछ आपका सर्विस है, गुड्स या प्रोडक्ट्स। उसमें एक चीज है जिस चीज को आप बार बार बेच सकते हो, अगरबत्ती, साबुन, कपड़ा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी, कोई किताब हो। सो एक चीज जो बार बार आप बेच सकते हो, मिठाई, चितले बंधु की मिठाई, तो सेल्स रिपीटेबल यूनिट, और आप बार बार बेच बेच कर उसमें एक नाम हो जाता है, चितले बोलने से ही मान लेते हो यार मिठाई तो अच्छा होगा। बंगाल में आओगे तो हम आपको वो खिलाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं इसको, रसगुल्ला। रसगुल्ला में उसमें वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रसगुल्ला है जो भीमचंद्र नाथ और गंगूराम बोलते हैं, लोग मान जाते हैं अरे ये तो रसगुल्ला मस्त है। तो ये ब्रांड प्रॉमिस है। बहुत दिन करते करते हैं या थोड़ा दिन भी किया, लेकिन अच्छी क्वालिटी का काम करते करते हो जाता है। और अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अब गंगूराम बहुत बड़ा नाम है, अच्छा रसगुल्ला या महाराष्ट्र, सांगली, पुणे में बैठ के तो अवेलेबल नहीं है,
तो वो उस आपके लिए वो प्रोडक्ट का मतलब नहीं है। सो आपका अवेलेबल होना जरूरी है कहीं ना कहीं वो चीज। सो सर्विस ये होता है जो टाइम स्किल रिलायबिलिटी बेचता है, जैसा रिपेयर ब्यूटी कंसल्टिंग बिजनेस है। गुड्स और प्रोडक्ट जो एक यूनिट, मतलब एक अगरबत्ती का पैकेट, एक तुमचा आवाज साबुन। चालू केलायस का निघालाय हा तो आप बंद म्यूट कर करो, आप म्यूट करो। द होस्ट काइंडली जो नॉट द मॉडरेटर, द होस्ट काइंडली इंश्योर दैट इज म्यूटेड। ओके, रिपीटेबल यूनिट, अभी तो ये सब जानना चाहिए यार। जो ये नहीं जानता आज के जमाने में वो तो पिछड़ा है। 2020 में कोविड आया था, सब लोग ऑनलाइन में मिलने लगे हैं, सब लोग तो ऑनलाइन का सिस्टम जान गए हैं अभी। सो चलिए, सेल्स रिपीटेबल यूनिट, एक प्रोडक्ट को बार बार बेचना, एक ब्रांड प्रॉमिस, इस प्रोडक्ट का एक क्वालिटी है, इसका विश्वास होना जैसा चितले बंधु का है, और अवेलेबिलिटी आसपास मिलना चाहिए। अब सांगली में अगर चितले बंधु नहीं मिला तो आपकी मिठाई सांगली में चल सकता है, लेकिन पहले दिन आपने बनाया और हजारों बिक गया, ऐसा नहीं होगा ना। थोड़े दिन तो टाइम देना पड़ेगा। चितले बंधु ने पुणे में बहुत टाइम दिया है, बहुत बहुत दिनों से टाइम दिया है। पीएन गडगिल का जो वो क्या कहते हैं ज्वेलरी, कितने सालों से चल रहा है, टाइम दिया है। तो आप तो कम से कम 6 महीना 1 साल तो दोगे। शुरू के क्वालिटी बहुत अच्छा रखोगे, शुरू के क्यों, क्वालिटी आपका अच्छा ही रहना है, और लोगों तक ले जाओगे तो उसके बाद ही वो बनता है अवेलेबल। तो फूड, क्राफ्ट, ट्रेडिंग, ये सारा चीज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है। सर्विसेज फीड यू, आप रोज का काम करते हो, डॉक्टर तरीके, टीचर तरीके, कंसल्टेंट तरीके, ब्यूटिशियन तरीके, रोज काम करते हो और आपको खाना मिलता है या पैसा मिलता है। सर्विसेज फीड यू, प्रोडक्ट्स फ्री यू। एक बार प्रोडक्ट बन गया, चितले बंधु के चितले जो परिवार है वो काम नहीं भी करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बन गया, उसकी टीम आ गई, उसका सप्लाई चेन बन गया है। अब उसको पैसा मिलता ही रहेगा, जब तक प्रोडक्ट बिगड़ेगा नहीं, जब तक उनका सुपरविजन ठीक ठाक है, मिलता ही रहेगा। सो प्रोडक्ट्स फ्री यू लॉन्ग रन में, बट सर्विसेज खुद को करते जाना पड़ेगा, देखते जाना पड़ेगा, फीड यू, दैट्स द पॉइंट। बाय द एंड ऑफ 2 आवर्स, अभी के 2 घंटे बाद आपको क्या मिलना चाहिए, डिसीजन फ्रेमवर्क, आपको गुड्स करना है या सर्विसेज करना है। प्लान दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ये होगा तो ये 2 घंटे का मतलब है, वैसे 2 घंटे में हम लोग का 15-20 मिनट निकल गया ऑलरेडी। सो आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि हमको अगले 1.5-2 घंटे में ये बेसिक चीजें समझ आनी चाहिए। अभी तक मैंने बताया पैसा बिजनेस का पहला कैपिटल, पहले ही बताया, मैं आखिर में पूछूंगा, अब ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने बताया सर्विस क्या है और प्रोडक्ट क्या है। नाउ लेट मी गो। अभी हम एक भारत में एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। मैं अभी अभी थोड़े दिन पहले अफ्रीका घूमकर आया हूँ। अफ्रीका में इथियोपिया, बुरुंडी, 2 शहर, 2 देश घूमकर आया हूँ। और अभी आगे नेपाल भी जाऊंगा, उसके पहले उसके बाद 1-2 और भी काम है। सो उस कंपैरिजन में भारत एक बहुत बड़ा मैं पॉजिटिव साइड देखता हूँ। चीन आगे, बहुत आगे है, चीन छोड़ दो, लेकिन जो बाकी देशों की, बहुत सारे देशों की तुलना में भारत में अभी मार्केट बनाना छोटे बिजनेस के लिए पहले से बहुत इजी हो गया। मैं यहाँ बैठ के, ओ फरवरी के एंड में मोरक्को जाना है, मैंने अभी मेरे ट्रैवल एजेंट को यहाँ बैठ के 60,000 रुपीज जीपे में ट्रांसफर किया है। सारी दुनिया में इतने देश है, आधे से ज्यादा देश है, जहां जीपे जैसा इतना इजी ट्रांसफर सिस्टम नहीं है अभी तक नहीं है। बहुत सारे देश है, पूरे देश दुनिया में। व्हाट्सएप, तो यूपीआई, हम लोग जीपे यूपीआई के माध्यम से करते हैं। तो एक यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम है भारत का, तो उसके माध्यम से सरकार कंट्रोल। सो यूपीआई पेमेंट्स का एक है। व्हाट्सएप बहुत, मतलब मैं एक लेडी को जानता हूं, मैंने ये पहले वाले पिछले साल भी बताया था एग्जांपल। वो लेडी अपना बुटीक चलाती है, तो उनके बुटीक में जो आते हैं वो तो कपड़े खरीदते ही है, बट शी डज अनदर थिंग। wherever whoever purchases one cloth from her, largely साड़ी है, इसके अलावा लेडीज के अन्य कपड़े भी, अब तो जींस के भी है। सो एंड शी टेक्स द व्हाट्सएप नंबर ऑफ दैट पर्सन, पूछ के कि मेरे जितने नए डिजाइन होंगे आपको मैं बताता रहूंगा। एंड इस लेडी है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेडी है, तो पीपल दे भी देते हैं।
and she keeps on sending. So she has made a broadcast group. In fact, 2-3 ग्रुप है और एक एक कंट्री वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग ग्रुप है, और कुछ भी नया डिजाइन उनका होता है, नया काम आता है एवरी सीजन में. एज यू नो, इन इंडिया में ध्यान दोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट्स है. अभी अप्रैल आ रहा है सामने. अप्रैल इज अ गुड मार्केट, जहां भी बैसाखी सेलिब्रेट होता है. पंजाब, अभी लोहरी गया अभी थोड़े दिन पहले. सो अभी अप्रैल आ रहा है. वैसे मैं जनवरी से बोलता हूँ, जनवरी में अभी अभी मकर संक्रांति गया है. इस समय बहुत कपड़े सेल होते हैं. आसाम में बिहू है, बंगाल में संक्रांति है, पंजाब में लोहरी है. इसके बाद आपका अप्रैल में आएगा न्यू ईयर, बैसाखी. बंगाल, पंजाब, अन्य मध्य भारत के बहुत सारे राज्यों में न्यू ईयर है. इसी तरह अगर देखते जाओ, सारा साल भर बारिश का टाइम थोड़ा कम, विंटर में बहुत ज्यादा. कभी दिवाली, अभी अभी थोड़ी देर में होली आएगा. होली में इतने नए कपड़े नहीं होते, बट वो अलग बात है. होते हैं सफेद कपड़े होते हैं, वो अलग टाइप का है, वो भी एक मार्केट है. उसमें रंग का मार्केट है, मिठाई का मार्केट है, अलग चीजों का मार्केट है. मैं कपड़ों और फैशन के अर्थ में बोल रहा हूँ. पूरे देश में बारिश के जो जून जुलाई अगस्त छोड़ दो, जुलाई अगस्त लार्जली छोड़ दो, सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक कम से कम पूरे देश में 25 तो उत्सव है, और वो हर उत्सव में कपड़े खरीदने का एक चल है. तो अगर मेरे पास 5,000 लोगों का व्हाट्सएप नंबर रहे, जो 5,000 लोग मोटा मोटी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के हैं, इवन नॉट सो मच रिच तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कपड़े साल भर में खरीदते रहते हैं. सो आई कैन क्रिएट अ बिजनेस सिटिंग इन माई हाउस. ये व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है अभी. छोटा बिजनेस, माइक्रो बिजनेस, जिस बिजनेस को आप लोग करना चाहोगे या करोड़ कर रहे हो, ट्रस्ट और चैट पे ही चल रहा है, विश्वास और चैट पे. तो ये लेडी ये करती है. एक जन को भी मिला उसने फेस टू फेस, एक कपड़ा भी लिया, कभी कभी कपड़ा खरीदा नहीं तो भी उसका ले लेते नंबर और उसको बोलते रहते. और देखा जाता है, मुझे एक दिन बोल रही थी, 40 to 45% सेल्स उनका हर महीने का रिपीट सेल्स है. पहले बेचा था, उन्हीं को रिपीट कर रहा है. 40 to 45%, और बाकी 60% नए लोग हैं, और ये नए लोग अगली बार के लिए रिपीट हो जाते हैं. इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा है. आप अगर अपने प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ जो यूज कर रहे हैं, उनका वीडियो, ये सब इंस्टाग्राम में डालते रहो, लोग आपको वहीं से डिस्कवर कर लेंगे. प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे रखते हो. ऑनलाइन अब आप माइक्रो अपना अमेजोन में डाल सकते हो, बहुत बड़ा ऑनलाइन है. इंडिया में फ्लिपकार्ट है, और गवर्नमेंट का एक फ्री ऑनलाइन है, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क है. तो गवर्नमेंट चलाती है. तो ओएनडीसी, अभी मेरा दोस्त शुभो सेनगुप्ता हैज बिकम द सीईओ देयर. तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओएनडीसी में. इनफैक्ट ज्योत्सना, आप बोल सकते हो मुझे, हम लोग शुभो सेनगुप्ता को हैदराबाद में इनवाइट कर सकते हैं. बहुत ही सही है. ओएनडीसी जो ओपन ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया है गवर्नमेंट ने, उसमें छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं. एनीवे, कमिंग बैक, तो भारत में हर गली में एक मार्केट है. रिपेयर करना, ट्यूशन देना, टिफिन सप्लाई करना, हर गली, एवरी लेन इज अ मार्केट. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज चीपर देन एवर. डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू व्हाट्सएप में पकड़ना, डिस्ट्रीब्यूशन हर तरह से, मतलब वो कुरियर सर्विसेज से करो, फिजिकल प्रोडक्ट है तो, अन्य प्रोडक्ट है तो अन्य तरीके से. बट डिस्ट्रीब्यूशन इज चीपर देन अदर कंट्रीज लार्जली. एंड ओएनडीसी इज ओपनिंग द नेटवर्क फॉर स्मॉल सेलर्स. वो छोटे सेलर के लिए ही है, करोड़ों रुपए के सेल करने वालों के लिए नहीं है. वो लाखों रुपए के सेल करने वालों के लिए, हजारों वालों के लिए. सो मार्केट प्लेस इंडिया में बहुत इजी है. तो पहले ये स्टार्टअप ग्लैमर में मत फंसो. गवर्नमेंट बोलती है कि माइक्रो ये होता है. अभी 1 अगस्त 2025, पिछले साल, माइक्रो बिजनेस को गवर्नमेंट ने रीडिफाइन किया. 2.5 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो आपका माइक्रो बिजनेस बना. लेकिन रियलिटी क्या है? अधिकतर लोग 1 से 3 लाख लेके बिजनेस करते हैं. तो नैनो बिजनेस है ये, माइक्रो से भी छोटा, नैनो. बट नैनो बिजनेस ही देश को चला रहा है. नैनो बिजनेस ही 35-40% का टोटल बिजनेस है. सो इसलिए यू शुड लुक एट, हमारी औकात के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए. तो गोल जल्दी से सीखना जरूरी है. पेपर वर्क में नहीं फंसे रहना. केवल पेपर वर्क चाहिए, बेसिक जो चाहिए वो है. आप लोग की ट्रेनिंग में वो भी कोई बताएगा. आई एम श्योर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बात करेगा आपसे
किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए या कोई कंसल्टेंट का मदद लेना चाहिए। येफी जो यूथ यंग एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, यूथ एड एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो तो ऐसे भी मैंने सुना है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर रहा है, एक साथ में 1,000 लोगों का वो ऑडिटिंग करेगा। छोटा छोटा पैसे 500 रुपया लेके सबका ऑडिटिंग कर देगा। दैट इज वेरी गुड। वो मेंबरशिप में आ जाएगा। ऑडिटिंग करना बहुत जरूरी है। आपका इनकम 10 लाख ही हो, 5 लाख ही हो साल भर में, तो भी ऑडिट करना जरूरी है। ऑडिटिंग करने से आपको बिजनेस मिलेगा। ऑडिटिंग करने से आपको बैंक आपको पैसा देगा। बिना ऑडिट का इसे रफ खाता में रफ लिख के रखा है, कोई बाद में याद भी नहीं है, उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दी सीखना बहुत जरूरी है। फास्ट लर्निंग। फाउंडर्स एक्चुअली स्टार्ट कैसे शुरू करते हैं? तो सबसे पहले पर्सनल, नीचे वाला देखो, पर्सनल सेविंग, वहीं से शुरू करते हैं। अब 50,000 1 लाख का बिजनेस होगा, आपको आइदर घर वाले लोग देंगे या खुद ही डालना पड़ेगा शुरू के लिए। पर्सनल सेविंग्स वो फाउंडेशन है शुरू, उसको बूट स्ट्रैपिंग भी बोलते हैं। सो वहां से शुरू करो। देन फैमिली लोन या इनफॉर्मल क्रेडिट, दोस्तों से लेना, फैमिली से लेना। भैया मेरे को 1 करोड़ 1 लाख दे दो। 1 करोड़ तो कोई देगा नहीं इजिली, 1 लाख 1.5 लाख दे दो, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत लोग देंगे। सो यहाँ से शुरू किया। मैंने बहुत लड़कियों को जानता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स थे, अपने परिवार को बोला मैं डाउरी आउरी देके तो शादी करने वाली हूँ नहीं, और वो 50 लाख खर्चा करके शादी करने वाली हूँ नहीं, मुझे 10 लाख दे दो, मेरे शादी के पैसे के लिए जो भी रखा है उससे बिजनेस खड़ा करता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोगों ने पैसा लिया भी है फैमिली से, लेकर चालू भी किया, अच्छा भी कर रहा है। सो फैमिली लोन्स, इनफॉर्मल क्रेडिट। उसके बाद कस्टमर एडवांसेस, मतलब जब आपका कस्टमर तैयार होगा, शायद आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, शायद किसी और जगह में काम कर रहे थे, आप कुछ कस्टमर को पहचानते हो, दे हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू एंड यू टेल आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस, मेरे घर से इतना ही मैं डाल सकता हूँ, आप थोड़ा मेरे को एडवांस दे दो, उसके बेसिस पे मैं आपको इतना इतना प्रोडक्ट कम दाम में इस तरह से दूंगा। वो जो ट्रस्ट करता है आपको, तब वो कस्टमर एडवांस। फिर गवर्नमेंट स्कीम भी होता है, सपोर्ट तरीके से ले सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम पे खड़ा होकर बिजनेस स्टार्ट करूंगा ऐसा सोचने वाले बुद्धू है, वो एकदम निरट बुद्धू है। गवर्नमेंट स्कीम स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट नहीं। सॉरी, सपोर्ट है, स्ट्रेटेजी नहीं है। सपोर्ट है, मतलब अपने पैसे से शुरू करना है। फैमिली से ले सकते हो, दोस्तों से ले सकते हो, फ्यूचर या करंट कस्टमर से ले सकते हो एडवांस, ये सब से शुरू करना है। साथ में सपोर्ट तरीके गवर्नमेंट स्कीम आ सकता है, मुद्रा लोन है, पीएम एसबीआई निधि है, पीएम स्वनिधि बोलते हैं उसको। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स है। आपने क्या किया, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब के बेसिस पे 15 लाख तक 10 लाख तक इजिली मिल जाता है। तो वो एडिशनल आना है, लेकिन शुरू कहीं करना है। सिर्फ कागज ले जाके मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को 10 लाख दो, नहीं मिलने वाला है। जो भी बताया वो सब नहीं होता इतना इजीली। रियली इस फॉर्मूला में जाओ, तो जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया। तो इसमें क्या हो रहा है, तेलंगाना महाराष्ट्र में अच्छा क्या क्या होता है, जो जनरल नॉलेज हम जानते हैं। सर्विस, दो दो पहिया गाड़ी या मतलब वो स्कूटी या 4 पहिया गाड़ी का रिपेयर बहुत इजीली चलता है। पिकअप ड्रॉप, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना या बड़ों को ऑफिस ड्रॉप करना, पिकअप करना बहुत अच्छा चलता है। टेलरिंग बहुत अच्छा चलता है। ब्राइडल ब्यूटी, जनरली मतलब ब्यूटिशियन का काम, और शादी का ब्यूटी हो तो और अच्छा, बहुत अच्छा चलता है। फार्म इक्विपमेंट रेंटिंग, आपने एग्रीकल्चरल के कुछ जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं, आपने 2-4 खरीद के रखा, लोग टाइम टू टाइम आपसे रेंट करके ले जाएंगे जो खरीद नहीं सकते, तो वो एक। तो इस तरह के बहुत सारे सर्विसेज, ट्यूशन है, बहुत सारे सर्विसेज चलते हैं। और प्रोडक्ट में चटनी पाउडर, मिलेट का खाना, स्नैक्स, ये तो यूथ एड वाले भी अपना नवाहार बनाते हैं, मिलेट का स्नैक्स बहुत अच्छा है। माइक्रो बैच फरसान, छोटे छोटे 30 मैंने 2 किलो 4 किलो करके फरसान। टर्मरिक या चिल्ली के पैक। इको क्लीनर, जो घर का पूरा जो क्लीन करे, ऐसा अच्छा इको क्लीनर। तो इस तरह के प्रोडक्ट और भी बहुत होंगे, ये मैं छोटे छोटे प्रोडक्ट जानबूझ के बोला। तो ये सारे बहुत इजीली चालू हो जाता है। अगर आप ये बिजनेस करते हो तो करा सकते हो। शॉप चलाना, छोटा चाय की दुकान चलाओ, मनस शांति चाय की दुकान कितना बड़ा हो गया अभी, अब तो करोड़ में चला गया। शुरू हुआ था 2-4 एक दुकान से चाय की। ये यूथ एड के शुरू के वन ऑफ द बिजनेस जो यूथ एड के साथ मेंटरशिप किया है, तो शुरू का बिजनेस में। तो इस तरह से ये यहाँ महाराष्ट्र तेलंगाना में बहुत चलता है। 5 पॉइंट, आप कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले सर्विस या गुड क्या करना है, उसको थोड़ा इन 5 क्वेश्चन को पूछो। स्किल एडवांटेज,
आप ऐसा क्या जानते हो जो आपके आसपास लोगों से बेहतर जानते हो? क्या आप कपड़े बनाना बेहतर जानते हो? क्या आप ब्यूटिशियन का मामला बेहतर जानते हो? क्या आप मिठाई बनाना बेहतर जानते हो? क्या आप पढ़ाना, अंग्रेज समझो इंग्लिश पढ़ाना बेहतर जानते हो? व्हाट डू यू नो? व्हाट इज द स्किल एडवांटेज यू हैव? क्या आप सबको अकाउंट समझाना जानते हो? क्या लोगों को डिफरेंट इंटरनेट का यूज करके उनके जो पेपर्स होते हैं, आधार कार्ड से लेकर रेलवे टिकट से लेकर पचासों जो इंटरनेट का यूज होता है उनका, वो आप करके हेल्प कर सकते हो? कौन सा स्किल एडवांटेज है आपका? ट्रस्ट प्रूफ, क्या दिखा सकते हो कि लोग आपको उस पर विश्वास करें? डेमो या सैंपल फटाफट बना के दिखा सकते हो ट्रस्ट प्रूफ बनाने के लिए? कैश स्पीड, कितना जो बिजनेस आप करोगे वो जल्दी चाहिए पैसा वापस, या थोड़ा टाइम लेकर बिक के बाद में आना है? अगर आपको 2-4 दिन में वापस चाहिए पैसा, या 2-4 हफ्ते में, या 2-4 महीने में, क्या स्पीड कितना चाहिए आपको? रिपीटेबिलिटी, एक ही क्वालिटी बार बार दे सकते हो, बार बार आप दे सकते हो? मार्केट मार्केट लिंक, कितना आपके दुकानों से दोस्ती है? व्हाट्सएप ग्रुप में कितने जगह में, मतलब वही बकवास वाला व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, जहां पे आप सामान की बात कर सकते हो, और या शॉप्स की कितने पहचानते हो, कितने एरिया में रिटेल शॉप्स को जानते हो? तो ये सारे उत्तर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका सर्विस या प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर आपका स्कोर 1 to 3 है तो शुरू सर्विस से करो, और आपका स्कोर 4-5 मतलब हाई स्कोर है तो गुड से शुरू कर सकते हो। वैसे मैं कंक्लूड करूंगा सर्विस और गुड एक ही कंटिन्यूअम है, मैं बाद में कंक्लूड करूंगा, लेकिन ये एक 5 पॉइंट फिट स्कोर बना सकते हो अपना। यू कैन गिव अ स्कोर योरसेल्फ ऑन दिस 5 पॉइंट्स। सर्विसेज में कैश आउटफ्लो जल्दी है, हाँ, क्योंकि पहले लोग जैसा, मतलब मैंने अभी एक ट्यूशन किया, हर महीना मुझे इनकम मिलेगा। मैंने ब्यूटिशियन का काम किया, मैंने जिसका काम किया सुबह से 3 घंटा, जैसे मैं अपना कोई सलोन में जाता हूँ 2 घंटे के बाद मैं पैसा देता हूँ, तो मतलब फटाफट जो काम किया उसी दिन पैसा मिल गया, उसी घंटे में पैसा मिल गया। सर्विस का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और लोग समझते हैं सर्विस में जो मेरा इनकम है वो 100% मेरा ही इनकम है, ऐसा नहीं है। 100% मार्जिन मेरा ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस सलोन में जाता हूँ, कलकत्ता में अभी एक पहले बॉम्बे में था, सलून अलग था, कलकत्ता में एक अलग है। और मजे की बात है, जब मैं बॉम्बे था तो भी सलून चलाने वाला एक यूपी का मुस्लिम बंदा था, और अब मैं कलकत्ता में हूँ तो बिहार का हिंदू बंदा है, लेकिन बिहार का है वो, लेकिन वो बंगाल में है। मजे की बात है कि ये सब काम अधिकतर दूसरे शहर से आके, दूसरे राज्य से आके लोग करते हैं अधिकतर जगहों में, बड़े शहरों में। सो एनीवे, that people think in services you get 100% margin, एकदम नहीं। सलून में जो जा रहा हूं मैं, उसको 500 रुपया दे रहा हूं जो काम का, उसको 500 रुपया पूरा इनकम नहीं है। उसका उस शॉप का रेंट है, 3 लड़का काम कर रहा है उनका सैलरी है, वहां पे एसी लगा के रखा है और पूरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वो चलते चलते 1-2 बार चाय पिलाता है उसका खर्चा है, उसके सारे फर्नीचर, उसके रिपेयर मेंटेनेंस है, उसका अपना टाइम तो छोड़ दो, बाकी सब है। तो इसलिए सर्विस माने 100% इनकम ये नहीं है। सो मंथली रेवेन्यू, एक महीने में उस बंदे ने 50,000 कमाया, और ये जो मैंने खर्चे बताया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और ये सब खर्चा निकाला, समझो मंथली रेवेन्यू उसका 50,000 हुआ। रेवेन्यू माने इनकम 50,000 हुआ, खर्चे उसके 35,000 हुआ, तो उसका रहा 15,000। उसने कितना घंटा काम किया? 20 दिन 8 घंटा करके 160 घंटे काम किए, बीच में बाहर गया 150 घंटे काम किए। तो मंथली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट उसका 15,000 रहा, और घंटे काम के 150, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 150 होता है 100, नहीं 150, हाँ 100। तो यानी उसका एक्चुअल इनकम है 100 रुपया पर घंटा। अगर टैक्स दे रहा है तो टैक्स भी कटेगा इसमें से, टैक्स के लेवल में आया तो। टैक्स कब आता है बाद में बात करेंगे। तो मंथली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क, वो उसका असली इनकम है। और जो दिखता है कि दिन 50,000, यानी दिन का 50,000 का दिन का 1,500 रुपया होगा, वाह मुझे दिन का 1,500 नहीं हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसको अगर 100 रुपया उसका बना, जैसे मैंने ये बताया 15,000 डिवाइडेड बाई 150, ये 100 रुपया घंटे का, और उसने 6 घंटा काम किया, तो दिन का उसका 600 रुपया इनकम है, 1,500 रुपया नहीं है। 1,500 रुपया उसका बिजनेस का इनकम है, उसका पर्सनल इनकम 500 रुपया हो सकता है, 600 रुपया हो सकता है।
तो ये बहुत लोग समझते नहीं, समझते जो मिला फटाफट, जो सर्विस देने के बाद पूरा ही मेरा इनकम है। हाँ, किसी का दुकान अगर नहीं लगाया, वो घर घर जाके सर्विस देता है, तो उसमें इनकम ज्यादा है, उसमें चार्ज भी थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। जो हमारे प्लम्बर सम्बर आते हैं ना, या ब्यूटिशियन भी घर पे भी आके करते हैं, उनमें इनकम ज्यादा है, माने एक्चुअल इनकम। लेकिन वहां आप अकेले ही काम कर सकते हो, और एक साथ में एक ही लोग को काम कर सकते हैं। दुकान देते हो तो एक साथ में 4 आदमी को आप सर्विस दे सकते हो, ये डिफरेंस है। तो ट्रैवल प्लस एडिटिंग प्लस रिविजन्स इज इक्वल टू अनपेड वर्क। मतलब जो ट्रैवल करते हो या कोई भी चीज में, एडिटिंग मतलब जो दूसरे टाइप के काम में जो ये सब करते हो, ये अधिकतर अनपेड हो जाता है अगर उसको आप खर्चे में नहीं गिनते हो। नॉर्मली ये होता है, एक छोटा पॉइंट है। तो इसका एक हो गया। सर्विसेज विन, क्यों, वाई स्टार्ट हियर, शुरू नॉर्मली सर्विस से क्यों करना चाहिए? सर्विस तो समझते हो, बार बार मैंने समझाया, जो चीज प्रोडक्ट नहीं है, आप अपने हुनर से, दक्षता से, स्किल से करते हो। फास्ट स्टार्ट, पैसा बाद लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार्बर शॉप चालू करने के लिए ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, टेलर शॉप चालू करने के लिए ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, ट्यूशन चालू करने के लिए बस आपका नॉलेज और थोड़ा फर्नीचर चाहिए और एक जगह चाहिए। तो फास्ट स्टार्ट, लो इन्वेंट्री कॉस्ट, कोई चीज सामान बना के रखने की जरूरत नहीं, इन्वेंटिंग कॉस्ट नहीं है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी माने जहां सामान को रखना होता है बना के रेडी करके, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, आई कम टू दैट। तो फास्ट स्टार्ट हो जाता है, लो इन्वेंट्री कॉस्ट है। हाइपर लोकल डोमिनेंस, अपने एरिया में डोमिनेट कर सकते हो। इस एरिया का मैं सबसे अच्छा ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस एरिया में सबसे अच्छा मैं सलून में चलाता हूँ। इस एरिया में सबसे अच्छा मैं क्या बोलते हैं, घर का जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सब है, प्लम्बिंग, ये करता हूँ। तो एक एरिया को डोमिनेट कर सकते हो। हाइपर लोकल मतलब छोटा एरिया है, गली 2 गली, इसमें डोमिनेट कर सकते हो। रिलेशनशिप कंपाउंडिंग, मतलब आप एक घर को अच्छा काम किया, दूसरे घर में प्रॉब्लम हुआ, फर्नीचर का प्रॉब्लम हुआ, पहले वाले से पूछा कौन किया तुम्हारा, अरे तुम वो हमारा मेरा मेरा जो घर है वहां पर शाहजहान बोल के एक बंदा है, वो बनाता है सारा फर्नीचर। तो उसका रेफरेंस सब सबको देता है, अरे मेरा ना ये 2 4 टेबल बनाना है, ये उधर कबर्ड टूट गया है वगैरह, अरे शाहजहान को बोलो ना, फोन दे दो, फोन नंबर दे दिया, चलो बुला देते हैं। तो ये रेफरल और रिपीट, एक ही घर में रिपीट और उस घर से दूसरा घर को रेफरल, रिलेशनशिप कंपाउंड होता है। और इसके बाद अगर आपको वो करना है, बड़ा करना है, तो आप जैसा कोई कंप्यूटर ठीक ठाक कर देता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करता है, अभी एक एक घर में करता है तो ठीक है। लेकिन अगर एक जगह एक दुकान है या एक कोचिंग सेंटर है या एक ऑफिस है जिसमें 20 कंप्यूटर है, तब वो बोलेगा मेरे को एएमसी दे दो, मैं हर हफ्ते में एक बार आऊंगा, हर मंडे को 2 घंटे के लिए आऊंगा, जो भी प्रॉब्लम है आपका साफ करके जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है तो भी मैं एक बार देख के एक बार ठीक ठाक करके जाऊंगा। और फिक्स्ड है, पैसा हर महीना में हर दिन नहीं लूंगा, जैसे एक बार जाते हैं तो पैसा लेते हैं, ऐसा नहीं लूंगा, एक साथ में आएंगे। और अपसेल पोटेंशियल मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी, इसके बेसिस पे हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। एएमसी मैं एक एक बार आने से मैं 2,000 रुपया लेता हूँ, वो नहीं करके अब महीने का ही 2,000 दो, मैं हर हफ्ते में आऊंगा एक बार, और साल का 24,000 दो। मेरे पास अगर 10 ऐसा क्लाइंट मिल गया तो 2,40,000 मेरा फिक्स हो गया। 2,40,000 मतलब महीने का 20,000, ये मेरा फिक्स्ड हो गया। इसके अगेंस्ट में क्या करना है, 10 क्लाइंट को 2 2 घंटा के लिए जाना है तो 20 ही घंटा लगा, मेरे पास और भी 30 घंटा है काम करने के लिए। नॉर्मली नॉर्मली हम लोग एक हफ्ते में 50 घंटा काम करते हैं, तो 30 घंटा और है जिसको मैं 1 to 1 बेच सकता हूँ, वो 30 घंटे से एक्स्ट्रा इनकम कर सकता हूँ। लेकिन मेरा फिक्स्ड हो गया कि मैं 10 एएमसी से महीने का 20,000 करके, सॉरी, महीने का 2,000 करके 10 एएमसी से टोटल 20,000 कमा रहा हूं, साल में 2,40,000। मैं घर को बोलूंगा कि भैया मेरा इनकम 20,000 है, तुमको इसी में चलना है, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा मैं जो फ्रीलांस करके कमा रहा हूँ वो मेरा सेविंग्स है, और उसका एक बड़ा अमाउंट हो गया तो मुझे टैक्स भी देना है, तो मेरा सेविंग्स है, उससे मैं घर बनाने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए व्यवहार कर सकता हूँ। तो ये इसलिए सर्विस बहुत फटाक से हो जाता है, फास्ट स्टार्ट है, हाइपर लोकल डोमिनेंस हो सकता है, रिलेशनशिप से आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे अप स्केल कर सकते हैं हम लोग सर्विस के माध्यम से। सर्विस बिजनेस, एक मिनट, अब सर्विस बिजनेसेस कब खत्म हो जाता है, कब मार खा जाता है, जब फाउंडर जो उसने शुरू किया उसी पे डिपेंडेंट है,
मतलब इफ आई गेट सिक इनकम स्टॉप्स, मैं बीमार तो नो इनकम, तो प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाई सर्विस बिजनेस का एक रिस्क है। कैसे इसको हटाना है वो बाद में बात करते हैं। तो एक रिस्क ये हुआ बैड रिव्यूज। एक घर में खराब काम किया, एक कंपनी को खराब सर्विस दिया, साथ में 10 आदमी जान जाएगा, वो उसका बदनामी बहुत होगा था। वो लिखेगा अपना व्हाट्सएप में, अपना सॉरी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और ज्यादा गुस्सा आ गया तो फेसबुक में भी लिखेगा, आपका फोटो भी डाल देगा। आप आके लड़ो लड़ो, क्या करोगे? उसको मारोगे तो तुमको जेल में ले जाएगा, पुलिस ले जाएगा। तो वो सर एक बैड जॉब जल्दी, अच्छा काम किया साथ साथ 10 आदमी नहीं जानते। कोई पूछता है आपने मुझे अच्छा काम करके दिया, मुझे बाजू वाले ने पूछा तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ फर्नीचर, ओ ही इज गुड एट दिस, ओ ब्यूटिशियन जॉब ही इज गुड एट दिस, ट्यूशन पढ़ाने का अपने बच्चों को, दिस मैन इज गुड। बट ये पूछेंगे तो मैं बोलूंगा। और खराब काम किया ना, वो सामने से लोग इधर उधर बोलते हैं, फेसबुक में लिखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं। उनको कभी पढ़ाने बुलाना नहीं, कुछ खास जानते नहीं है, टाइमली नहीं आते वगैरह, ऐसा लिखेगा लोग। तो कभी भी बैड रिव्यू, गुड रिव्यू स्लो प्रोग्रेस, बैड रिव्यू फास्ट प्रोग्रेस। बार्गेनिंग, जो भी काम करो भाई थोड़ा कम करो ना। बड़ी बड़ी दुकानों में जाके 100 रुपए का चीज को 300 रुपए में खरीदेंगे, बार्गेन अलाउड नहीं, वो लिखा दिया नो डिस्काउंट लिख कर रखते हैं। लेकिन छोटे छोटे लोगों से जब सामान खरीदते हैं तब 40 रुपया को भी 25 रुपया करने की कोशिश करते हैं लोग। ये इंडियन कल्चर है। सामने से एक चूहा भी जाएगा तो दिखेगा, पीछे से हाथी भी जाएगा तो दिखेगा नहीं। सो दिस इज इंडियन कल्चर। तो बार्गेनिंग एक और चैलेंज है। ये 3 रिस्क है, आपको फिक्स करना है। तो स्टैंडर्डाइज और ट्रेन कीजिए। मतलब अगर आप कंप्यूटर्स का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग, मैनेजमेंट, असेंबलिंग, तो इसको स्टैंडर्डाइज कीजिए। इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये, फिर 4 आदमी को ट्रेन कीजिए। काम आप पकड़िए, वो बंदा जाके काम करेगा, इंप्लीमेंट वो करेगा। उस एक का भी बैड रिव्यू आएगा उसको निकाल देने का, दूसरा को ट्रेन करने का। तो स्टैंडर्डाइज और ट्रेन, चेकलिस्ट बनाइए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एसओपी। तो स्टैंडर्डाइज एंड ट्रेन करेंगे तो आप बीमार होंगे भी तो बिजनेस चलेगा। चेकलिस्ट एंड गारंटी, मतलब चेकलिस्ट बनाना है, एक कहीं भी जाओगे तो क्या क्या करोगे, और गारंटी देना है आपके क्लाइंट को कि आपका इस तरह का गारंटी, इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम फ्री में करके देंगे दोबारा, गारंटी देना। तो आपका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगा। और फिक्स्ड पैकेज 3 टायर, बेसिक काम, एकदम नॉर्मल छोटा जो बेसिक है, कम पैसे में एकदम, जो उसके ऊपर नॉर्मली जो अच्छा काम करोगे, मतलब बेसिक के ऊपर प्लस 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 करके पैसा भी थोड़ा बढ़ेगा। और एक है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब बस उनके लिए ही करोगे जो मांग रहा है, वो पैसा भी ज्यादा देगा। होते हैं लोग ऐसा। मेरी बेटी की शादी है, ऐसा करो कि तुमने जो कभी पहले किया नहीं, जो इस एरिया में हमने देखा नहीं। तो पूछोगे आप क्या क्या देखो, उससे बड़ा क्या चाहते हो, तो उसका विश लिस्ट सुनोगे। विश लिस्ट माने उसके मन में जो भी है वो बताएगा, उसके बेसिस पे आप उसके लिए कस्टमाइज कर दोगे। अगर वो बोलता है कि भाई 4 हाथी आना चाहिए, पीछे 10 घोड़े आना चाहिए शादी, मेरी बेटी की शादी में, उसमें गेस्ट आएंगे, अगर बोलता है, होता है लोग पागल होते हैं, तो बोलता है तो यू हैव टू डू इट, तो करते हैं। वेडिंग वेडिंग मैनेजमेंट इज अ बिग बिजनेस नाउ। कोई बोलता है वो 50,000 करोड़ का बिजनेस है। एक दिन मेरे को एक जन ने, वेडिंग मैनेजर खुद है वो, 8-10 करोड़ का बिजनेस करता है, उसने हिसाब करके पूरा केस बता के ऐसा ऐसा करके बताया कि 90,000 से 1 लाख करोड़ का बिजनेस है पूरा भारत में वेडिंग मैनेजमेंट। बोले वाह, 1 लाख करोड़ सिर्फ शादी करा के, लोगों को शादी करा के इतना पैसा खर्चा। तो बोले बोला है ऐसा, वो खुद ही 8-10 लाख करोड़ का करता है, 8-10 करोड़ का। और एक शादी में नहीं, एक शादी में किसी का 50 लाख की शादी है, किसी का 1 करोड़ की शादी है, किसी का 40 लाख का है, लेकिन वो मैनेज करता है। तो एनीवे, सर्विस बिजनेस में ये रिस्क है और इस रिस्क को रोकना है। तो ये मैंने बताया सर्विस बिजनेस के लिए। आगे चलते हैं। एक मिनट। तो स्केल, अगर आपको स्केल करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको 2 घंटा टाइम दे रहा हूं, ये बोलोगे तो टाइम का पैसा मिलेगा। 2 घंटे के लिए आपको 2,000 रुपया मिला, घंटे का 1,000 रुपया, तो 2,000 रुपया मिला। चाहे वो ब्यूटिशियन का आउटकम है, चाहे वो पढ़ाने का आउटकम है, चाहे वो कुछ भी आउटकम है। लेकिन अगर आपने बोला
कि मैं जो टाइम दूंगा, चाहे 2 घंटा दूं या 20 घंटा, जैसे भी, आपको ये रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट को बता दिया तो वो पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो पैसा ज्यादा हो जाएगा। जैसा सोलो फ्रीलांसर कोई होता है, अकेला काम कर रहा है, फ्रीलांस काम कर रहा है, कंप्यूटर रिपेयरिंग करना हो, किसी को कुछ पढ़ाना हो, फ्रीलांस कर रहा है, वो अपने काम को अगर प्रोडक्ट में बना देता है कि मेरा ये सर्विस में ये पॉइंट आता है तो इतना पैसा, उसके साथ ये जुड़ जाता है तो पैसा बढ़ जाता है, ऐसा प्रोडक्ट बना दिया तो उसका इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्टिवाइज्ड सर्विस। उसके बाद अगर वो बोलता है हर महीना, हर हफ्ते मैं एक बार आऊंगा और आपका सारे प्रॉब्लम किसी से बोलने की जरूरत नहीं, मैं ही सॉल्व करूंगा, तो एएमसी आ गया या रिटेनर आ गया, तो रिकरिंग इनकम, तो वो इनकम और ज्यादा हो जाता है। फिर वो अगर एजेंसी बना ले और अपना छोटा छोटा पार्टनर अलग अलग जगह में बनाए, उनको अपने स्टैंडर्ड में करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल जो भी बोलो, तो वो और ज्यादा इनकम है। तो सोलो फ्रीलांसर से प्रोडक्टिवाइज सर्विस, रिटेनर, एएमसी, रिकरिंग इनकम से एजेंसी बनना। एक आदमी जब डिजाइन करके होर्डिंग बना के एडवर्टाइजिंग कराता है तो वो सोलो फ्रीलांसर है। फिर वो जब बताता है कि मैं आपको इस तरह का 100 होर्डिंग, पूरे 2 शहर मिलाकर 100 होर्डिंग, ये इतने टाइम के लिए ये दूंगा और इसका इतना कॉस्ट है, तो वो एक हो गया। फिर तीसरा वो बोलता है मैं हर सीजन में आपको 10-10 होर्डिंग दूंगा और हर महीने का ऐसा खर्चा है, तो वो रिटेनर हो गया। फिर वो अपना एजेंसी बना देता है, होर्डिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सब मिला के एक एजेंसी बना देता है। तो ऐसे करके आदमी सर्विस में बार बार रिपीट करके और लोगों को जोड़ के डेलीगेट करके अपना बिजनेस को स्केल करता है। तो सर्विस में भी स्केल होता है। एक क्वेश्चन पहले मुझे दिया गया था कि सर्विस में स्केल होता है या सिर्फ प्रोडक्ट में स्केल होता है। सर्विस में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू टर्न योर स्किल इनटू अ प्रोडक्टिवाइज्ड सर्विस एंड देन क्रिएट एएमसी एंड फाइनली क्रिएट अ चेन ऑफ पीपल जो आपका काम कर रहा है। एजेंसी है, आप जानते हो, ये सलून बनाया, क्या नाम है, एक तो फेमस आदमी है जो सलून बनाता है, उन्हें बाल काटने का ब्रांड बनाया, अरे मुस्लिम जेंटलमैन फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली से शुरू किया, फिर बॉम्बे आया, अब तो पूरे देश में वो अपना, उसके नाम पे जो सलून चल रहा है वहाँ। हाँ, कोई anyone tell- हाँ? जावेद हबीब। जावेद, क्या बोले और एक बार? जावेद हबीब। हाँ, हबीब्स राइट, जावेद हबीब, हबीब्स। और हबीब अब पूरे देश में स्प्रेड है। मैं छोटे छोटे शहर में जाके देखता हूँ हबीब सलून, अरे मैं पूछता हूँ यहाँ कभी आया क्या हबीब साहब? बोले नहीं 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 आया। उन्होंने मैनुअल बनाया, हमारा ट्रेनिंग किया ऑनलाइन में, हम लोग दिल्ली गए, ट्रेनिंग हुआ, अब उनका पूरा स्टाइल फॉलो अप हम करते हैं और इसके अगेंस्ट में हमारा महीने का इतना फ्रेंचाइजी फी देते हैं। देखो, यूरो किड्स, बच्चों की जो पढ़ाई होती है, यूरो किड्स मालूम होगा, यूरो किड्स फ्रेंचाइजी मॉडल में। सो उसमें एजेंसी बन गया वो, मतलब एक जगह में ही आप हो लेकिन देश भर में आपके वो गुडविल को, ब्रांड को यूज करके, और आपका मैनुअल होगा, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस होगा, सर्विस ही तो है, बाल काटना एक सर्विस है, अब मतलब प्रोडक्टिवाइज सर्विस हो गया वो। या यूरो किड्स की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई सर्विस है। मूव मूव फ्रॉम सेलिंग टाइम टू सेलिंग आउटकम। जितना ज्यादा आउटकम सेल कर सकते हो, मैं आपको ये रिजल्ट दूंगा तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। और टाइम, मैं आपको 2 घंटा दूंगा, जिसे कंसल्टेंट करते हैं। मैं हर महीने में 3 दिन के, मैं कई सारे कंसल्टेंट प्रोजेक्ट किया। जब मैं बोलता हूं मैं हर महीने 4 दिन के लिए आऊंगा, आपका ये सारा कुछ रिव्यू करूंगा, आगे के लिए बात करूंगा, तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। अगर मैं बोलता हूं और मैं इसके साथ इंश्योर करूंगा कि आपके इतना इनकम हुआ, इतना रिजल्ट हुआ, रिजल्ट जैसे ही मैं फिक्स करता हूं पैसा बढ़ जाता है, पैसे का जो अर्निंग मेरा होता है वो बढ़ जाता है। अभी मेरी टीम अगर वहां अच्छी है, सिचुएशन अच्छा है, तो मैं आउटकम को, रिजल्ट को क्यों नहीं बोलूं, ज्यादा इनकम क्यों नहीं करूं? लेकिन मैं श्योर नहीं हूं टीम के बारे में, क्योंकि काम तो उनका टीम करेगा ना, टीम पे श्योर नहीं हूं, उस इकोनॉमी के बारे में श्योर नहीं हूं, उनका कितना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है श्योर नहीं हूं, तो मैं उसमें रिस्क में क्यों जाऊं? तो मैं टाइम, 4 दिन के लिए आऊंगा, 4 दिन का समझो 50,000 लूंगा, तो खत्म हो गई बात। तो अगर आउटकम बोलूं कि आपका ये चीज हर महीना होगा, तो 50 का 5 लाख भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू पुट योर सर्विस। तो स्केल करने के लिए रिपीटेशन प्लस डेलीगेशन, मतलब और लोगों को इन्वॉल्व होना जरूरी है। एक्टिविटी, अभी तो मैंने बताया ना 3 तरह का लेयर बनाने के लिए, बेसिक, फिक्स प्राइस, फिक्स डिलीवरेबल। डिलीवरेबल मतलब आपको क्या क्या करना है, तो बार्गेनिंग बंद करना है एकदम, शुरू में नहीं होता है, थोड़ा दिन बाद होता है। फिक्स प्राइस, फिक्स डिलीवरेबल्स। तो देखो, प्रोडक्ट में भी ये सच है
बहुत सारे प्रोडक्ट कोई बार्गेन करते ही नहीं है उनका। मसाला, 4 मसाले का ब्रांड है, चारों समझो हल्दी का ब्रांड है, लेकिन दाम में अलग अलग है, सेम वजन में दाम में अलग अलग है, प्रोडक्ट में भी है। एनीवे, फिक्स प्राइस, फिक्स डिलीवरेबल, और ये डिलीवरेबल है। तो ये हो गया बेसिक। स्टैंडर्ड जो ज्यादा पॉपुलर वही होता है कि मैं बेस्ट वैल्यू दे रहा हूँ, आपका पैसे का बेस्ट वैल्यू दे रहा हूँ। ये डिलीवरेबल्स है, वो पॉपुलर होता है, थोड़ा पैसा ज्यादा होगा उसका, वो स्टैंडर्ड पैकेज होगा। प्रीमियम बस आप ही के लिए कर रहा हूं और आप जल्दी से जल्दी कर रहा हूं, तो उसका सबसे हाई होगा। आप ही के लिए यूनिक कर रहा हूं, तो वो प्रीमियम होगा। ये शादी वाले बिजनेस में मैंने देखा है, बोला है मैं आपको 2 दिन का शूट कर दूंगा, 4-4 घंटे का, मैं आपको 300 फोटोग्राफ शूट करके दूंगा, मैं आपका इवेंट मैनेजमेंट में ये करूंगा। ऐसा फिक्स्ड होता है, उसके लिए मैं 40,000 रुपया लूंगा, 30,000 रुपया लूंगा, ये फिक्स्ड है। इसके ऊपर वो लोग बोलते हैं एक आध दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो ठीक है, एक आध और काम चाहिए तो बोलो, तो उसके लिए सब 60,000 70,000 लेते हैं। और जब बोलता है नहीं नहीं भैया मुझे इस लेवल का काम चाहिए, मुझे हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, नाव में शूट करने का है, उधर मैं धुआं डाल के उसमें से मेरे बेटी और उसका हस्बैंड का शूट करने का है, एक शूट के अलावा भी इवेंट मैनेजमेंट में 4 तरह का खाना होगा, जब आएंगे तब ये देंगे बारातियों को, फिर ये पूरा जब आदमी जब बोलता है ना, एक लिस्ट बोलता है, तो वो प्रीमियम हो जाता है। तो कहाँ वो 40-50 हजार का है, वो तो 4-5 लाख 10 लाख, उसके ऊपर भी डिपेंड्स, 1,000 आदमी हुआ तो और ज्यादा, तो डिपेंड्स। सो प्रीमियम अलग है। तो सर्विस भी आपके पैकेजेस में हो सकते हैं। मैं इसको छोड़ता हूँ। प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट में थोड़ा आते हैं। तो पहले सर्विस तक रुक के पहले मैं पूछ लेता हूँ लोगों से थोड़ा। तो हमारे यहाँ मित्र लोग जो लोग हैं, मित्र लोगों से थोड़ा पूछता हूँ अभी तक का कैसा कैसा रहा। यहाँ पे एक नागमा जी है, एक दीपू जी है और एक रेखा जी है जो दिख रहे हैं मुझे। कोई भी एक जन बताए अभी तक का आपका क्या समझ रहा, क्या अंडरस्टैंडिंग रहा, कैसा मैंने यूजफुल कितना रहा, थोड़ा बताइए। एनीवन, थोड़ा अपना अनम्यूट करके बताइए, एक फीडबैक दीजिए। रेखा जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर अभी तक का जो भी रहा बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहा सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बहुत बारीकी से समझाया कि बिजनेस को कैसे छोटी से लेवल से लेके बड़े में हमको लेके जाना है, ठीक और है। अब किस तरह से सर्विस और बिजनेस। प्रोडक्ट में डिफरेंस समझा, सर्विस और प्रोडक्ट में डिफरेंस थोड़ा मालूम पड़ा। जी 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 जी, सर्विस में हमको क्या देना है और प्रोडक्ट मेरा कैसा रहेगा, यही। ठीक है। नागमा हाँ, जी कुछ बोलोगे? नगमा, नगमा जी कैसा समझा, कितना समझा अभी तक? अनम्यूट करो, बोलना है तो अनम्यूट करो नीचे। अभी म्यूट में हो, मालूम है म्यूट अनम्यूट करना। हाँ, करके बताओ कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, कितना काम में लगाओगे। हम्म। नगमा जी को बोलना भी नहीं आ रहा है, क्या शर्म हो रहा है? दीपू, दीपू, दीपू को चेहरा नहीं दिख रहा है वैसे। क्या फीडबैक नहीं होता है तो मजा नहीं आता ना बात करने का। Yeah. चलो विदेंद्र जी आप थोड़ा बोलो, फिर मैं नेक्स्ट, थोड़े बहुत स्लाइड्स और है, आई गो। थोड़ा आप बताओ, यू गिव सम नहीं सर, एग्जांपल। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नहीं, एनीथिंग दैट यू कैन अह, ऐड, एनी पॉइंट यू कैन ऐड, एनी एग्जांपल। तो यस सर, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। मतलब ये भी शायद हमारे नगमा जी, आप बोलना चाहते हैं? जी सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत हाँ अच्छे से बोलो। समझाया। ठीक है, अच्छा रहा तो ठीक है। आप क्या करोगे इसका ये बताओ। मुझे तो आपको करोड़पति बनाना है ना, मेरा काम तो वो है। आपको चलो या लखपति बनाना है, पहले मिलियनियर बनाना है। अच्छे से समझाया मिलियन सर, बने बहुत 10 लाख। समझ लगा। हाँ सुना, बोलो बोलो ध्यान से भी सुना सर। बोलिए बोलिए, क्या बोला मैं बहुत अच्छे समझा से नहीं। बारीकी से समझाया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से समझाया आपने, ठीक समझ में आया। हमारा काम औरों से अलग है, ये दिखाने का है। तो सर हाँ मैं बोलूँ क्या हूँ, तब्बो बोल रही हूँ। हाँ, राइट, बोलिए बोलिए तब काफी अच्छा, बोलिए। तब और बोलो। नितिन जी, आप बोलना चाहते हैं? हेलो, नितिन। हेलो। हेलो। हाँ, मैं यस सर। तब्बो बोल रही सर। हाँ बोलो। हाँ हाँ। हेलो, नमस्ते सबको मेरी तरफ से, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। कोई बात ठीक नहीं, है। बोलो बोलो। और आप बहुत अच्छा समझाया है कि आप लोग बिजनेस कैसे आप बढ़ा सकते हो। मतलब आप लोग इतना जितना अच्छा प्रोडक्ट लोगों को शेयर करोगे और अपन जैसे
इंस्टा वगैरह बनाते हैं, अगर वो सब पे रील्स वगैरह भी डालोगे, अपना प्रोडक्ट अच्छा रहेगा ना तो 10 जगह फैलेगा वो। और आप बताएं कि अगर अपने यहाँ एक जन आता है, अगर अपन उसको अच्छा काम करके दे रहे अपने जो भी बिजनेस है, तो 10 जगह जाके फैलाएगा। तो वो जाके 10 जगह बोले, फिर वो 10 को और बोलेगा, वो 10 से 30 40 50 हो गए। तो अपना वैसे है, मगर जो ब्यूटी पार्लर है, अगर मैं किसी का ब्लीच फेशियल एब्रो अच्छा बना रही हूँ तो अपने को प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। और अगर राइट। अपन घर तक या और घर तक के अगर अपन सर्विस देने जा रहे हैं, तो उसमें भी मुझे भी पता, भी पहले मैं कैसा करती थी कि घर तक के बुलाती थी, जो पार्लर का अपन पार्लर में 500 देते थे, घर पे आते वो चार्ज 1,000 लेती है। तो मतलब हाँ, अपना ज्यादा सर्विस ज्यादा अच्छी प्रोवाइड होगी। तो प्रीमियम ये हो गया, सबसे प्रीमियम आप सर्विस। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी नॉलेज मिली। थैंक हम्म। यू, आप ऐसे ही हम लोगों को समझाते रहो, बढ़ाते रहो आगे। अभी मैं उसकी आधा बहुत बाकी बहुत है अभी। थैंक यू, हाँ, आधा बाकी है अभी। थैंक यू। थैंक हाँ यू तब। जानकी हाँ। राम रेड्डी जी, जानकी राम रेड्डी जी बताइए, आपने Uh, हाथ उठाया, बताइए। Hi, sir. हाँ जी। Yeah, the session is quite insightful, sir. I really like the way you have been. Hindi is no problem, no, with you? Hindi is no problem, right? Yeah, you can speak in English, Hindi, sir. I can understand, but I can't respond in Hindi. Doesn't matter. You speak in English, but you are Yeah, understanding Hindi, right? yeah, I can understand Hindi, sir. Perfect. बोलो बोलो So, जानकी। Excellent. I really like the session, sir. The way you address the, I mean, like the startup, the differencing between how the service and how the product should be. I understand when we before entering into any startup idea or something. So Good. actually, the students, we have some, I mean, like the university exposure, sir. Basically, like we know what is startup ecosystem. Like the recently, like Rekha Kumari ma'am or somebody has been spoken. They haven't gone through in their life this kind of ecosystem. Right. So, in your speech, sir, I completely felt that even a kid can easily That is my understand purpose. the thing Yeah. Yeah. because we need that clarity, sir. Right. Even the startup is organized or unorganized, even they are doing some group of community business or something. We need to know how the numbers and clarity of what business we are doing, how we Thank need to you. sell the product. I really like Correct. the way you express your the complete experience of your whole life journey in the startups. Yeah. Thank you. We will Yeah. continue. We'll come back. Yeah, yeah, sure, Sayan, definitely, sir, definitely. mute करिए. Sayan mute करिए. Okay, we will complete and then again come to questions. Very soon again come to questions. Just a minute. So that was a small break and now we move ahead after the break. I hope you can see my screen anyway. And this, yeah. So products. प्रोडक्ट्स, अभी हम प्रोडक्ट पे थोड़ा ज्यादा जाएंगे कि प्रोडक्ट स्केल कर सकता है बहुत जल्दी। आप 10 प्रोडक्ट से 100 प्रोडक्ट, 100 से 1000, 1000 से 20,000, 20,000 से 2 लाख प्रोडक्ट तक ले जा सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट का एक पनिशमेंट भी है, वो पनिशमेंट को समझ के स्केल करना है। तो पे टुडे, पहला तो कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा है। ब्यूटिशियन मेरा तब्बू बहन ने बोला कि अब भी मैंने काम दिया, मेरे को 7-7 पैसा मिल गया। मेरा सेंटर पे आके ब्यूटी का सर्विस लिया 400 रुपया, मैं किसी के घर पे गया तो 4,000 तक भी मिल सकता है, ये बोला है उसने। मतलब आपको इमीडिएट रिटर्न मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट, देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। और पे टुडे, क्या पे करना, रॉ मटेरियल को लाना है। फिर मेक इन में प्रोडक्ट बनाया हमने, अभी साबुन बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, स्पाइसेस बनाओ, जो भी प्रोडक्ट बनाओ, तो नोटबुक्स बनाओ, पेन बनाओ, जो भी प्रोडक्ट बनाओ, तो उसके आपको रॉ मटेरियल को अभी अभी खरीद के पैसा देके लाना पड़ेगा। कपड़े बनाओ, फिर इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। कपड़े, आप एक कपड़ा लेके तो दुकान नहीं चला सकते, आपको कम से कम 10,000 कपड़े चाहिए, 2,000, 4,000 से कम से शुरू करो। तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। स्टॉक, स्टॉक बना के रखा है, तो इन्वेंट्री बनाओ, उसमें पैसा कुछ अटकेगा। फिर सेल लेटर, पहले तो इन्वेंट्री बनाओ, फिर उसके बेचने की जगह, आइदर घर घर बेच रहे हो, एग्जीबिशन में बेच रहे हो, एक्सपो में बेच रहे हो, या एग्जीबिशन एक्सपो एक ही चीज है, या दुकान में बेच रहे हो, या दूसरों के दुकान में रिलेशन बना के अपना प्रोडक्ट रख रहे हो। जब अपना प्रोडक्ट रख रहे हो, 10 प्रोडक्ट रख रहे हो, तुमको थोड़ी 10 का पैसा इमीडिएट मिल जाता है। बहुत अच्छा लक होगा कि वो 10% एडवांस देगा। अधिकतर जगह में कोई एडवांस, तुम्हारा सामान रख के जाओ, एक हफ्ता बाद आओ, बिकेगा तो तुमको पैसा देगा, नहीं बिका तो वापस ले जाओ, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो ये सेल लेटर होता है। पहले प्रोडक्ट, अभी पैसा लगाया रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद इन्वेंट्री बनाया, स्टॉक किया, उसके बाद मैं सेल करना शुरू किया, घर घर जाके सेल किया,
दुकानों में सेल किया, अपना दुकान बनाया, इंस्टाग्राम में प्रचार किया, फेसबुक में प्रचार किया, ये सारा करके बाद में सेल होता है और पैसा उसके बाद आता है। तो ये जो मैंने सामान बनाया, रॉ मटेरियल, और जो पैसा मिला, इसमें एक लंबा गैप हो जाता है। कभी वो गैप 2 हफ्ते का है, कभी 2 महीने का है, कभी 6 महीने का भी गैप होता है। ये गैप को बहुत लोग संभाल नहीं सकता, क्योंकि उसको हर हफ्ते में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना ही है। और प्रोडक्ट का दूसरा चैलेंज है, आप एक प्रोडक्ट बना के सेल नहीं कर सकते, लेकिन सर्विस में आप एक सर्विस दे सकते हैं। अरे मेरे दोस्त, म्यूट रखो सब लोग। जब मैं पूछ रहा हूं तब अनम्यूट करके जरूर बोलिए, अदरवाइज म्यूट रखिए। आप अपने को भी उल्लू प्रसाबित करते हो और लोगों का भी टाइम बिगाड़ते हो। म्यूट रखो। तो एनीवे, तो प्रोडक्ट में तो आपको इन्वेंट्री बनाने में बहुत खर्चा हो जाता है, दुकान लगाने में खर्चा हो जाता है, फिर दुकान का प्रचार करने में, प्रोडक्ट का ब्रांड का प्रचार करने में खर्चा हो जाता है, फिर दूसरों के दुकान में डाल के या कहीं एग्जीबिशन में जाके उसमें खर्चा हो जाता है। तो ये जो पूरा लास्ट में आपको पैसा मिलता है, और ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए के सामान में 50 रुपया मिलता है, 10 के जगह में 20 मिलता होगा, बहुत अच्छा हुआ तो 25 मिलता होगा। तो इस बीच में इतना लंबा टाइम चला गया, और अगर आपने बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट भी देना है। तो दिस इज अ चैलेंज। लेकिन आप प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते, एक सर्विस में एक आदमी को सर्विस देते हो 1 एट ए टाइम, लेकिन प्रोडक्ट में आपको वैरायटी रखना जरूरी है। कपड़े का दुकान है तो 5000 कपड़ा रखना जरूरी है, 3000 कपड़ा रखना जरूरी है, और वो भी अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज, अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से। लोग साड़ी का बिजनेस क्यों करते हैं मालूम है? साड़ी में साइज नहीं होता है, ये असली है। साड़ी में साइज नहीं होता है, और देश में एक एक जनता है जो साड़ी पहनती है, फटाक से करते हैं। लेकिन कुर्ती का बिजनेस रिस्की ज्यादा है, कुर्ता, कुर्ती, सूट, इसका बिजनेस रिस्की ज्यादा है, क्योंकि इसमें साइजेस बहुत है। तो देयर इज अ चैलेंज हियर। वो चैलेंज को जो ले सकता है, उसके लिए करोड़ों बनाना कठिन नहीं है। मेरे नजर के सामने बाजार बोल के एक ब्रांड बना है, कलकत्ता बाजार बोल के एक ब्रांड बना है कलकत्ते का। एक दुकान, और मैक्सिमम 20 लाख या 15 लाख लेके उतरा होगा। आज उसका सारा बंगाल में 200 दुकानें हैं, 200 दुकानें हैं, और ये टोटल आई थिंक 12 या 13 साल में हुआ है। कुछ करोड़ों का सामान बेच रहा है। वो उसने स्ट्रेटेजी किया है बहुत हाई। अरे यार, तंग हो गया मैं। कब आदमी लोग सुधरेगा? थोड़ा अपनी औकात बढ़ाओ यार। जब आप बात कर रहे हो, सुन रहे हो, तो उसमें म्यूट करके रखा हुआ। क्या बोले, मतलब मैं अभी जो जो फिर से बात करेगा ना, वो तो गंवार तो है ही, उल्लू भी है, सीधी बात है। जो सच है वो सच है। जब हम आपको पूछते हैं तब बोलने के लिए एक सेंटेंस भी नहीं होता है, और जब एनीवे, तो प्रोडक्ट में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट कवर रॉ मटेरियल। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वो रॉ मटेरियल का खर्चा, पैकेजिंग, शिपिंग मतलब भेजना, और कमीशन, कोई सेल्स कमीशन भी देना होता है, ये सारा खर्चा आपको कवर करना होता है। दिस इज अ चैलेंज। इन्वेंट्री इज अ कैश ट्रैप, मतलब आपका पैसा अटक जाता है, कैश ट्रैप हो जाता है। इन्वेंट्री इज अ कैश ट्रैप अनलेस यू कंट्रोल बैच साइज एंड पेमेंट टर्म्स। कितनी जल्दी आपको पेमेंट मिलेगा? एक साथ में हजारों का नहीं बना के मैं 100 का बना के बेचूं बैच साइज, तो इसमें आपका प्रोडक्ट, इसमें बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, मिठाई के प्रोडक्ट में, कपड़े के प्रोडक्ट में, कई सारे प्रोडक्ट में बहुत जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बन गया, बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन गया, पर पैसे में मतलब काफी कमाने लग गया। सो बड़ा आदमी उस हिसाब से बोल रहा है। प्रोडक्ट के बारे में 7 ट्रूथ। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। आज आपने अच्छी प्रोडक्ट बनाई और 3 दिन बाद का प्रोडक्ट खराब निकला। आज आपकी मिठाई जबरदस्त है, 1 महीने के बाद का मिठाई में सड़ा हुआ मिठाई निकला, किसी का पेट खराब हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गया, एकदम खत्म हो जाएगा, रातों रात खत्म हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। जो आज का क्वालिटी है वो हर दिन का क्वालिटी होना है। पैकेजिंग इज ट्रस्ट। ऐसा अच्छा पैकेजिंग सिर्फ सजा के नहीं, बहुत मैंने सजा के एकदम अच्छा ग्लैमरस पैकेजिंग किया, वो बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट को यूज करके ट्रस्ट हुआ है क्या नहीं, रेपुटेशन हुआ है क्या नहीं। इनफैक्ट ज्यादा ताम झाम करके पैकेजिंग करोगे तो बहुत अच्छा बिकता नहीं है। सिंपल पैकेजिंग रखो, कलरफुल होगा,
बेसिक बातें रहेंगी, जो कानून के हिसाब से जो लिखना होता है वो सब लिखा रहेगा, वो ठीक है। लेकिन पैकेजिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट जरूरी है। माइक्रो बैचेस, 500 1000 पीस एक साथ नहीं बना के 30 30 40 40 50 50 का पीस बनाना है, मैंने प्रोडक्ट बनाना है, एक 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 बैच बनाना है। बैच माने होते हैं एक ग्रुप एक साथ में, तो छोटे छोटे बैच होगा तो बिकता जाएगा। लो ब्रेकेज लो रिटर्न्स, सो ब्रेक ब्रेक होने का स्कोप बहुत कम रखना है, मिनिमम लॉस डैमेज होने का स्कोप कम रखना है। प्री ऑर्डर, सामान बिकने के पहले कितना प्री ऑर्डर ला सकते हो। प्री ऑर्डर मैंने आप किसी को आपने 2 सामान बेचा, बेच के बोला इसी के जैसा आपको और क्या चाहिए, मेरे को 10 दिन टाइम दे दो, मैं आपको उस जैसा चाहिए वैसा लेके आता हूँ, तो वो प्री ऑर्डर लेना, पहले से ऑर्डर ले लेना। डिस्ट्रीब्यूशन इज रियल बिजनेस, आप सामान को पहुंचाओ, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट सामान है, ये सामान को पहुंचा कैसे वो इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्किंग कैपिटल का डिसिप्लिन, 1 रुपया खर्चा इधर उधर नहीं करने का। मेरा प्रोडक्ट मैंने 3000 रुपया डाल के बनाया, मुझे वो बिक कर मेरे को 8000 9000 मिल गया, मैं साथ साथ फिर से 3000 का बनाया और बाकी 5000 से मस्ती किया, खाया पिया इधर उधर कोई कुछ उड़ा दिया, तो नहीं जमेगा। आपको जैसे 8000 आता है ना, अपने लिए 1000 रुपया रख के 7000 का प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको 12 में बेचो, अपने लिए 1000 रख के फिर 11000 का बनाओ, तो जाके वो बहुत जल्दी बड़ा होगा। सो और वो जैसे जैसे बेच रहे हो ना, उसका डेटा कलेक्ट करो। डेटा बहुत, आज की दुनिया में पैसा करेंसी नहीं है बिजनेस का, डेटा करेंसी है। डेटा, आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, एक यूनिवर्सिटी 5000 एडमिशन करने के लिए 50,000 का डेटा निकालता है। उस 50,000 डेटा को लाने के लिए, गुड क्वालिटी डेटा लाने के लिए, लाइव डेटा लाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करता है, क्योंकि दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जो भी आपसे सामान लिया उसका डेटा रखो, जो आदमी लिया नहीं लेकिन कुछ पॉइंट बताया, वो पॉइंट को नोट करो, उसको इंप्लीमेंट करना है। उस आदमी के पास वापस जाना है, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, देखो हमने बदला है वो चीज, अभी आप मेरा प्रोडक्ट और भी अच्छा है, लोगे क्या? तब उसको दिमाग में आता है ये तो बहुत सिंसियर है, ये बिजनेस आदमी तो बहुत सिंसियर है, कंटिन्यूअसली अपना डेवलप कर रहा है। तो वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये 7 पॉइंट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट चाहे अगरबत्ती हो, साबुन हो, कपड़ा हो, फूड का आइटम हो, कुछ भी हो, ये 7 चीजें आपको ध्यान में रखना है प्रोडक्ट के लिए। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल वाली बात कर रहा हूं, छोटे बिजनेस के लिए बात कर रहा हूं, जो बिजनेस गिरेगा नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। मिस्टेक से सीखना है। होम बेकर, होम मैंने जो केक वेक बनाते हैं ना घर पे, केक पेस्ट्री बनाते हैं, होम, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी सारे देश में देख रहा हूँ लड़कियों को जिनको पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, 12th के बाद वो कोर्स करते हैं होम बेकरिंग का, और बेकिंग का वो कोर्स भी होता है, उसका भी इंस्टीट्यूट होता है, फिर वो चालू करते हैं घर से। तो पहले घर से बनाने में हाई मार्जिन है, नो डाउट, जगह नहीं है लगाने के लिए, किचन घर का ही किचन है, सामान सब मार्जिन अच्छा है, केक बनाओ पेस्ट्री बनाओ जो भी। एग्रीगेटर कमीशन क्रस्ट प्रॉफिट एट स्केल, जैसे ही मैंने घर से मैं रोज का 20 प्रोडक्ट बनाता था, बेचता था, 20 में मेरे को 70% 60% प्रॉफिट होता था। जैसे मैंने 2000 बनाना शुरू किया, 5000 पीस बनाना शुरू किया, तो मैं घर पे नहीं कर पाया, मुझे फैक्ट्री जैसा बनाना पड़ा, तो मुझे एक जगह लेनी पड़ी, बड़ी जगह, जहाँ पे चॉकलेट बनाना, केक बनाना, ये सब कर रहा हूँ। अब मैं कमीशन पे लोग रख रहा हूँ, तो वो जगह का खर्चा, स्टाफ का खर्चा और कमीशन का खर्चा मेरे को मार दे रहा है। पहले मैं शांति से 20 प्रोडक्ट बना के जो मिलता था, मेरा अपना मेरा परिवार का चलता था। अब मैं 20,000 बना रहा हूं, लेकिन सब समय टेंशन में हूं। ये एक लड़ाई है। अगर वो आप सिस्टम को अच्छा बना सकते हो, एक चीज जान के रखो, बिजनेस में आप महान हो इससे बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे हो, लेकिन आप अपने नीचे अपने से अच्छे लोगों को रखे हो, कमिटेड लोगों को रखे हो और उनका ध्यान रखे हो, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अकेला बिजनेस को इतना ही कर सकते हो, उससे आगे नहीं ले जा सकते। एक कोचिंग सेंटर चला सकते हो ट्यूशन करके, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपके साथ 40 आदमी डेडिकेटेड, नॉलेजेबल, कमिटेड आदमी की जरूरत है। आदमी को डील करना सीखना है। मैं इस प्रसंग में एक दूसरी बात करता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट की शादी हो रही थी, तो वो लड़की ने बोला कि जिस लड़के से मेरा शादी का फिक्स हुआ है, घर से ही फिक्स किया है, वो कनाडा में रहता है, वो सिर्फ 5-7 दिन के लिए आ रहा है, शादी तो 6 महीने बाद होगा, लेकिन फिक्स करने आ रहा है, और वो 5-7 दिन मेरे से मिलने आ रहा है। मेरे से एक ही बार मुलाकात होगी,
मैं कैसे समझूं कि वो नहीं सही लड़का है नहीं लड़का है? हम बोले इसका कोई जवाब नहीं है, तुम्हें खुद ही समझना है, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूँ। बोले क्या कर, जब आ रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब वो 2 बजे तक 3 बजे तक आएगा, फिर हम लोग थोड़ा घूमने निकलेंगे, हम लोग एक जगह खाना भी खाएंगे, एक आध सामान खरीदेंगे, और और कुछ मतलब फिल्म देखेंगे या कोई कहीं जाएंगे या कहीं बैठ के बातें करेंगे, कुछ ऐसा था। तो कुछ देर घर पे बात, कुछ बाहर घूमेंगे, ऐसा मतलब मोटा मोटी 7-8 घंटा हम लोग एक साथ बिताने वाले थे। तो कैसे समझे? तो मैंने उसको 2-3 चीज बोला था। वो अपनी दूसरे शहर से आ रहा है, गाड़ी तो होगा नहीं, तो वो एक गाड़ी हायर पे लेते, उबर जो होता है ना, 6 घंटे का उबर ऐसा करके लेते हैं। बोले वो ड्राइवर से कैसा बिहेव करता है, वेटर से कैसा बिहेव करता है, तुम्हारे लिए दरवाजा खोल के तुमको उतरने बोलता है, या हर समय वो आगे आगे बढ़ता जाता है, तुम पीछे पीछे जाते हो। जब वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जवाब के लिए वेट करता है या अपना कुछ बोलते रहता है? जब तुम्हारे साथ वो अपना परिचय देगा, साथ में ये तुम्हारा परिचय, तुम्हारा क्या फ्यूचर प्लान है ये पूछता है, वो अपना ही प्लान बताता है। ये सारे जवाब तुमको बता देगा वो आदमी कैसा है। और भी मैंने समय बचा रहा हूँ, 7-8 पॉइंट बताया था, उसने लिख के भी लिया था, उस लड़की ने पूरा लिख के भी लिया था, 8-10 पॉइंट बताया था। तो उसने उसी पॉइंट्स पे उसने टेस्ट किया, और फिर बाद में रात को फोन करके मेरे को बोला नहीं मुझे नहीं शादी करना है इसके साथ। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उस सारे पॉइंट से सब। तो आज कोई मतलब ये आपके ऊपर है कि किस तरह आप डील कर रहे हो। 2000 का प्रोडक्ट बना रहे हो, सॉरी 20 प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें से 2000 10,000 में जा रहे हो, तो किस तरह से प्लानफुली चलते हो, किस तरह से अपने लड़कों के साथ मतलब उनको कॉन्फिडेंस लेके काम करते हो। जान के रखो, आदमी जब कंपनी छोड़ता है, हाँ सैलरी के लिए बहुत लोग छोड़ते हैं, कभी कभी छोड़ना जरूरी भी है, लेकिन अधिकतर आदमी छोड़ते हैं कि उसका बॉस, इमीडिएट जो सीनियर है, मालिक नहीं भी हो सकता, इमीडिएट मैनेजर, वो खराब है, उसका बिहेवियर खराब है। तो नौकरी लोग बिहेवियर को, सॉरी, लोग मैनेजर को रिजाइन करते हैं, कंपनी को कम। ये समझना जरूरी है थोड़ा। एनीवे, कमिंग बैक, होम बेकर। तो पहले मार्जिन ज्यादा था, जब बहुत बड़ा हो गया तो मेरा मार्जिन कम हो गया, मेरा प्रॉब्लम है। तो इसलिए बड़ा होना को सिस्टमेटिक बनाना है, रातों रात बड़ा नहीं होना है। जितना जल्दी बड़ा हो गए बहुत ज्यादा, उतनी जल्दी गिरने का भी चांस होता है। इसलिए सिस्टम बनाओ, ये सिचुएशन में क्या करना है, आप नहीं भी होगे तो वही करना है, ये सिस्टम बनाओ। एसओपी इंग्लिश में बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। एसओपी बनाओ। अपैरल रिसेलर, अपैरल रिसेलर, फास्ट सेल्स, जब ट्रेंडी होता है ना कोई चीज, आजकल वो इधर कटा हुआ कपड़ा वो बहुत ट्रेंडी है, तो बहुत जल्दी जल्दी सेल हो जाता है, लेकिन फिर वो स्टाइल चेंज हो जाता है लोगों का। अभी मैं जब बचपन में, क्लास 10 का एक ही फोटो है जिसमें मैं स्कूल के वहां खड़ा हूँ, एक वो उलन एक ड्रेस पहना हुआ है, वो उस तरह का उलन आजकल बनता ही नहीं है, वो था, और मेरा बेल बॉटम पहना हुआ है। तुमको मालूम है, याद होगा बेल बॉटम क्या होता था? ऊपर कमर इतना है, नीचे का जो पैर वो इतना ऐसा फैला हुआ, तो बेल बॉटम पहन के खड़ा है। आजकल वो पहन के निकलूंगा ना लोग पत्थर मारेंगे, लोग पत्थर मारेंगे, वो ट्रेंड है ही नहीं। आजकल तो पूरा पैंट ऐसा होने का चोंगा होता है, और उस समय बेल बॉटम बहुत चालू था। वो जितेंद्र ने बेल बॉटम पहना था किसी फिल्म में, बस क्या है, राजेश खन्ना भी पहना था, बस सारे लोग पहनने लगे। तो अपैरल में एक चैलेंज है, आपने जो चीज चल रहा है देखकर उसी के 50,000 कॉपी, 50 तो नहीं बनाते, 10-1,000 बना लिए, 7-1,000 बना लिए पीस, उसके बाद देखा गया कि 6 महीने बाद वो बिक ही नहीं रहा है, तो आपका वो इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा, जहां पे भी आपने स्टॉक किया है वहां पड़ा रहेगा, 6 महीने का सारा प्रॉफिट निकल जाएगा। So apparel is, therefore you don't have to produce a lot. You have to produce in small batches and always do research about the next trend and accordingly create new batches. So this is another very important aspect. सब लोग 10 आदमी ये कर रहा है, चलो मैं भी ये करता हूँ, तो पहले तो वो 10 आदमी का बिकेगा क्योंकि उनका पहले फेमस हो गया, उसके बाद डिमांड रहा तो आपका बिकेगा। सो ऐसा नहीं कि हर तुम 10 आदमी वाला ही करना है, आपको अपना रिसर्च करके अपने ऑडियंस को समझ के करना है। हो सकता है कभी कभी और लोग जो कर रहे हैं आप किया उस सीजन में बिक गया, जरूरी नहीं कि अगले सीजन में वही करो। सो दैट्स द वन। पेपर प्लेट, अरे कितना इजी है कागज का प्लेट बनाना, ये भी प्रोडक्ट ही है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन क्या है उसको बनाते वक्त अगर यूटिलाइज, आपने शादी के सीजन में किसी ने पेपर प्लेट बनाया, बहुत बिका, फिर बारिश के सीजन में उसको देख के दूसरा बिजनेसमैन ने बनाया, पड़ा रहा 3 महीने तक, बिक ही नहीं रहा है बारिश के सीजन में,
पेपर प्लेट यूज करते नहीं है लोग अधिकतर बारिश के सीजन में, और पावर का बहुत खर्चा होता है बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी का। सो द पॉइंट है कि ये सब रिसर्च करना जरूरी है प्रोडक्ट के संदर्भ में। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके बताया मैंने। सो हाउ टू ग्रो प्रोडक्ट बिजनेस, बैचिंग, छोटा छोटा बैच बनाओ, मतलब 50 पीस, 100 पीस, छोटा छोटा बैच। बैच माने स्टॉक साइज, पीस का नंबर। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और क्वालिटी को कंट्रोल करना है, किसी भी हालत में क्वालिटी गिराना नहीं है। फिर धीरे धीरे चैनल एक्सपांशन करना है। पहले तो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाओ। डायरेक्ट कंज्यूमर माने दरवाजे में गया, एग्जीबिशन में गया, हर दरवाजे में बेचा, हर एग्जीबिशन में बेचा। सोसाइटी जो होते हैं बड़े, उसके नीचे दुकान लगा, छोटा वो जो टेम्पोररी एक वो लगा के बैठते हैं, और वो बैठा स्टॉल जैसा लगा के। तो वो D2C माने डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो पहले तो वो बनो, उसके बाद रिटेल। थोड़ा नाम वाम हो गया, थोड़ा पहचान हो गया, तो फिर जो दुकानें हैं बड़ी बड़ी या छोटी बड़ी मीडियम साइज, जो स्टॉल मॉल में है या मॉल के छोड़ के भी, उनको जाके बोलो भैया मेरा 5 पीस रखो, डिमांड अच्छा हुआ तो मैं 5 को बेच के पैसा लूंगा, फिर आपको 20 पीस दूंगा। पहले वो लोग बोल सकता है यार तुम्हारा बिके नहीं बिके, हमको क्या मालूम। बोले आप सामने देखने लायक जगह में रखो, 5 ही देके जा रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, आप साइन कर दो, 5 रिसीव हो गया। फिर मैं वापस आके अगर 5 आपका बिक गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैं आपको 20 देके जाऊंगा, 5 का पैसा लूंगा। ये होता है रिटेल बिजनेस। फिर रिटेल किया। इसके बाद B2B, बड़ा ग्रुप है, उसके 40 दुकान है। अब उसके हेड ऑफिस में जाके बोला आपके तो 40 दुकान है, मैं 100 पीस देता हूँ, 40 इंटू 100 4,000, 4,000 देता हूँ, रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं 40,000 दूंगा। तो धीरे धीरे बड़ा होता है। D2C, फिर रिटेल, फिर B2B। और जब ऐसा हो गया, अगर आपका 40,000 पीस बिक गया कोई कपड़े का, यानी आपका ब्रांड बनने लगा। आप बीबा हो गए, बीबा जो लड़कियों का कपड़ा है, W जो लड़कियों का कपड़ा है, वेस्ट साइड जो लड़के लड़की बच्चे सबके कपड़ा है, जिनी एंड जॉनी जो बच्चों का कपड़ा है। तो इस तरह से विमल और जो पुरुषों का शूटिंग है, तो इस तरह से आप एक ब्रांड बन गए। तो शुरू छोटा बैचिंग से शुरू करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस रखना है, फिर चैनल एक्सपेंशन करना है, फिर ब्रांड कम्युनिटी। कपड़ा के लिए भी हो सकता है, फूड का आइटम, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, पैकेज फूड, इसमें भी है, साबुन उसमें भी है। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली ग्रो द प्रोडक्ट बिजनेस। तो एक्टिविटी, सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस जिस दाम में आप बेचोगे उसमें से रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल दो। समझो एक साबुन 100 रुपया में बेच रहे हो, उसमें जो रॉ मटेरियल गया उसमें केमिकल और बाकी सामान जो गया है, उसका दाम एक साबुन बनाने में 15 रुपया है, तो 15 निकाल दो। तो 100 से 15 गया 85। फिर उसको पैकेज किया ना, एक पैकेज बनाया उसको, उसके लिए 5 रुपया गया, तो 85 से 5, वैसे रॉ मटेरियल 15 नहीं होगा, कम से कम 30 रुपया होगा, तो 70 रहा। 70 से पैकेजिंग 5 रुपया गया, तो 65 रहा। फिर उसको ले जाना पड़ा ट्रांसपोर्ट, एक साथ में तो एक नहीं ले गया, बहुत सारे ले गए, पर प्रोडक्ट में 5 रुपया हुआ। 65 से 5 माइनस तो 60। फिर कमीशन देना पड़ा 20%, तो 20 रुपया उसमें गया 100 रुपया में, तो 60 से 20 माने 40। थोड़ा बहुत वेस्ट होगा ही, 5% वेस्ट होगा ही। जो 40 से 5% वेस्ट हुआ तो 35। ये 35 आपका असली इनकम है एक साबुन पे। आपने बेचा है 100 रुपया में, लेकिन 35 आपका असली प्रॉफिट है। अगर वो 100 रुपया, सॉरी, वो जो 35 है, मैं उसमें जो फैक्ट्री मशीन ये सब इंटरेस्ट वो रॉ मटेरियल में ले आया, हो सकता है कि आपका नहीं उसमें इंक्लूड हुआ है, तो 35 में से जो आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट, फैक्ट्री का खर्चा, लोगों का सैलरी, वो सब कटेगा। वो कटने के बाद आपके पास 10 रुपया रहेगा। एक साबुन 100 रुपया में बेच के आपने 10 रुपया कमाया। अगर ये माइनस फिगर हो गया, -10 हो गया, तो आपका घर से पैसा गया। तो इसलिए प्राइसिंग भी ऐसी करना है कि मुझे घर पे हर साबुन पे 100 रुपया, 10 रुपया लाना है या 15 रुपया लाना है। तो ये सब ऐड करते करते जाके फाइनली प्राइसिंग होगा। प्राइसिंग उसके बेसिस पे होगा। ऑब्वियसली आप कंपटीशन से ज्यादा नहीं प्राइस कर सकते, वो भी ध्यान रखना है। सो दिस इज हाउ। तो एक ही रास्ता है। मैंने आजकल देखता हूँ हर्बल साबुन बहुत चल रहा है। मैं भी किसी एग्जीबिशन या किसी जगह में जाता हूँ, बोलता है हर्बल सुगंधित साबुन, में एक बार स्मेल करता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, 2-4 ले ही लेते हैं। क्योंकि आजकल वो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जो केमिकल वाला साबुन मजा नहीं आता, तो ले लेते हैं। सो हर्बल साबुन बहुत चल रहा है। उसमें भी आप इस तरह से आपको हिसाब करना है, प्राइसिंग कैसे आना है, तो किस तरह से आप पहुंचोगे।
यूज सर्विसेज फॉर कैश, गुड्स फॉर स्केल। सर्विस से आपको कमाना है और गुड्स वो है जिसमें आप स्केल करना है, जैसे प्रोडक्टाइज सर्विस। एसी डीप क्लीन चेकलिस्ट, आप एसी क्लीन करना ये एक सर्विस है। घर घर में जाके एसी साफ करके एसी ठीक ठाक चलाओ। विशेष करके समर जब आ रहा हो, जब गर्मी का सीजन आता है, अभी आएगा ना थोड़े दिन में गर्मी का सीजन, ये अपना मई महीना में आ जाएगा, अप्रैल के एंड से चालू हो जाएगा, तब देखो ये बिजनेस बहुत चलेगा। हर घर में जाके आदमी एसी चेक करता है, मतलब मैकेनिक होता है, तो उसको आप देते हो पैसा है, तो ये हुआ प्रोडक्टाइज सर्विस। और इस सर्विस को प्रोडक्ट लैडर में ले जाओ, मतलब टेलर प्रोडक्टाइज है सर्विस है, और बुटीक वो प्रोडक्ट लैडर हो गया। सर्विस प्लस सब्सक्रिप्शन, देखो हर दिन दोपहर का खाना दे देंगे आप, महीने का दिन का 200 रुपया करके, महीने में 6,000 रुपया होगा ना, हाँ 6,000 रुपया, तो आप 6,000 देना। अगर वो सिंपल खाना है, वेजिटेरियन है, 100 रुपया करके 3,000 देना। तो ये हुआ सब्सक्रिप्शन, मतलब महीने भर का मैं सब्सक्राइब कर दिया। 30 दिन नहीं 20 दिन भी हो सकता है, क्योंकि हर दिन ऑफिस नहीं जाएगा, 2,000 भी हो सकता है। ये डब्बा जो चलता है ना बॉम्बे में, डब्बा, ये डब्बा सिस्टम सब्सक्रिप्शन से चलता है। और एएमसी मैंने पहले समझाया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो एएमसी 12 महीने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो वो सर्विस है सब्सक्रिप्शन, इससे आप बड़ा होते हो। प्रोडक्ट सर्विस लेडर, ये वाटर प्यूरिफायर, मैंने वाटर प्यूरिफायर बेचा आपको, वो तो प्रोडक्ट है। हर महीने आके मैं एक बार सर्विस देके जाऊंगा और आपसे 200 रुपया लूंगा, साल भर में 2,400 रुपया, तो वो एएमसी हो गया, एएमसी हो गया। आप खराब होगा फिर मेरे पीछे घूमोगे, वो जरूरत नहीं है। और मैं आके एक धक्के में 1,000 रुपया लूंगा, जरूरत नहीं है। हर महीना फर्स्ट संडे या सेकंड संडे आपके यहाँ आऊंगा, आने के पहले व्हाट्सएप कर दूंगा, आके मैं आपका चेक करके जाऊंगा, और मैं साल में इतना लूंगा। हर विजिट का 200, एक बार में साल भर का लेंगे पूरा। ये मेरा गाड़ी क्लीन करता है, महीने का 1,200 रुपया लेता है, रोज अच्छे से क्लीन करता है, मतलब कम से कम 20 दिन तो क्लीन करता ही है, तो 1,200 रुपया हो गया। अगर वो मेरा गाड़ी जब गंदा होगा कभी, तो एक दिन के लिए बुलाऊंगा, तो एक विजिट में 500 रुपया लेता है। एक बार साफ करने में अच्छे से करेगा 500 रुपया लेगा, धो के पानी से पूरा करे 500 रुपया लेगा। लेकिन मैं 1,200 में हर दिन के लिए महीने का ले लिया, संडे छोड़कर, बाकी 25 संडे आई थिंक, और बीच में कभी कभी छुट्टी उट्टी और भी होता है, तो कम से कम 20 दिन वो मिनिमम करता है साफ, तब 1,200 रुपया लेते हैं। 100 रुपया लेगा। उज्जवल सर, सो आई विल गो, इसमें आगे बढ़ते हैं। जीएसटी सर्विसेज, सर उज्जवल सर, हाँ सर बोलिए। हाँ थोड़ा टाइम, Oh yeah, I'll close it. या लास्ट या लास्ट स्लाइड ही। ओके सर, ओके। जीएसटी सर्विसेज अगर 20 लाख से ज्यादा तुम्हारा बिलिंग हो गया साल का, तो आपको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। किसी सर्विस का 6% है, किसी सर्विस का 12% है, 28% है, अलग अलग परसेंट है। तो जीएसटी 20 लाख के ऊपर अगर होता है तो आपको देना है जीएसटी। 40 लाख से ज्यादा खर्च आपने सामान बेचा तो वो फिर जीएसटी हुआ। गुड्स, सामान में गुड्स में 40 लाख और काम में सेवा सर्विस में 20 लाख से ज्यादा साल में जब होगा तब, हर महीना नहीं। पहले एक बार 20 लाख होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, माने अप्रैल से अगले साल का मार्च तक, इसके बीच। और उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा रेट्स है अलग अलग स्टेट में, तो वो अलग पॉइंट है। एफएसएसआई, कोई भी खाने का आइटम अगर तुम बेचते हो तो एफएस फूड एंड सर्विस सिक्योरिटी, कुछ लंबा सा एक वर्ड है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, उसका वो फूड डिपार्टमेंट होता है, उससे ये लेना पड़ता है। तो वो लेके तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, लाइसेंस देगा, तो आप जितना बेच सकते हो। एफएसएसआई चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये गवर्नमेंट का एक नीति आयोग में एक है उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो कंप्लायंस करना अच्छा है, कंप्लायंस से ही आप काम बिजनेस कर सकते हो। तो ये बेसिक पेपर वर्क और बेसिक टैक्सेशन के बारे में, ये मैं छोड़ देता हूँ। कैसे आप पहले 7 दिन में फिर ऐसा ऐसा करके पहले डिमांड को वैलिडेट करो, एक प्रोडक्ट बना के बिना डिमांड आपका जो सर्विस हो या प्रोडक्ट उसको वैलिडेट करो। फिर स्मॉलेस्ट ऑपरेशनल एक सिस्टम बनाओ जिसमें चेकलिस्ट, लेजर, रिव्यूज, यूनिट इकोनॉमिक्स, फिर थोड़ा बेचकर फिर उसका दाम को एडजस्ट करो, ठीक ठाक करो, लीकेज मतलब लॉस होना बंद करो, फिर धीरे धीरे स्केल करो। इस तरह से यू कैन प्रोसेड।
I'll leave this. So in conclusion, I will come back to you on conclusion. Is that good? 155 लोग अभी भी है, अच्छी बात है. तो Yes. फंडामेंटल पॉइंट है, सर्विस से शुरू करना इजी है, कम खर्च है, और प्रोडक्ट में धीरे जाना संभव है. लेकिन जो प्रोडक्ट में जा सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है, तो प्रोडक्ट में इनकम बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्केलेबिलिटी बहुत है. इसका मतलब नहीं है कि सर्विस में स्केल नहीं हो सकता. तो वो सर्विस में भी स्केल हो सकता है, मैंने समझाया. फ्रीलांसर से, प्रोडक्टिवाइज सर्विस से, फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा करके B2B तक जब जाओगे तो स्केल उसमें भी हो सकता है. फंडामेंटल पॉइंट से आई गो बैक टू आवर moderator of the day, chairperson of the day, Vijender ji, to Thank you, summarize, sir. take questions or do whatever. Sorry for the time taken. Back to you. नहीं सर, बहुत अच्छा सर. मैं तो और 1 घंटा बैठने के लिए तैयार हूँ. नहीं, काफी 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 अच्छा मुझे भी सीखने के लिए मिला. इट्स नॉट दैट मतलब 90 मिनट्स में इतना सब कुछ कवर कर सकते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ. और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने, मतलब यहाँ के जितने भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं. I'll keep that those also. But I just wanted to, मतलब एक बार रिमाइंड करता हूँ सबको कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने जो बताया है, मैंने मेरे दिमाग में जो मतलब ऐसे रुक गए हैं, तो वो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए. पहले एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करो. यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे सेलिब्रेट करना चालू करो सर के हिसाब से. और ये पैसा पैसा कैपिटल नहीं है, वो ट्रस्ट, टाइम, स्किल जो है, वो है आपका पहला इन्वेस्टमेंट. उसको कभी भी मत भूलना. और सर्विसेज का जो इनकम है वो जल्दी आ जाता है, और प्रोडक्ट का है थोड़ा लेट आ जाता है. तो चूज केयरफुली, मतलब थोड़ा सोच समझ के. आपका जो सर ने जो 5 पॉइंट स्कोर कार्ड जो बनाया है, काफी अच्छा स्कोर कार्ड है. मतलब वो स्कोर कार्ड आप खुद से रिफ्लेक्ट करो, और 3-4 आ रहा है तो सर्विस पे जाओ. और सर्विस को आगे कैसे प्रोडक्ट बनाना है वो लेटर पार्ट है. सर भी तो है और अपना टीम भी तो है, हमेशा आपके साथ रहेंगे. और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज के इंडियन इकोनॉमी में ये माइक्रो वाला, नैनो वाला कंफ्यूजन चला गया है. तो नैनो बिजनेस मतलब अपने जैसे लोग 1-2 लाख का कैपिटल से बना रहे हैं, यही तो चला रहा है देश को. तो वो फील प्राउड करना और सेलिब्रेट भी अच्छे से करना. मतलब सेलिब्रेशन मतलब हंसते हुए काम करना. और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ये बताया कि मतलब ऐसा लगा, मुझे टॉन्टिंग लगा, गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से मत जाओ. मतलब गवर्नमेंट स्कीम को उठा के तुम कैपिटल लोन के हिसाब से जा रहे हो, तो तुम्हारा बिजनेस कहीं नहीं जाएगा. तो पहले खुद से क्या बनाते हो, खुद का स्किल क्या है, खुद का टाइम क्या है. ये गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है तो मैं बिजनेस चालू करूंगा, ये बहुत अलग तरीका का सोच है. वैसा मत सोचो, आगे बढ़ो. गवर्नमेंट स्कीम एक सपोर्टिंग सिस्टम है बस. और प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए आपने रिपीटेटिवली एक चीज बताया सर, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. मतलब डिसिप्लिन, जितना डिसिप्लिन प्रोडक्ट का क्वालिटी में चाहिए, टाइम का चाहिए, मतलब जितना हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कितना नेगेटिव जा रहा है, कितना पॉजिटिव जा रहा है, तो वो डिसिप्लिन हमको रखना ही पड़ेगा. तो वो हमेशा याद रख लो. और मैं अभी सर, आप और कुछ बोलना चाहते हैं तो 1-2 और भी बोल दीजिए, क्योंकि ये एक मतलब फाइनली मैं ये चाहता हूँ सर कि एक एक्शन प्लान दे दो. हमारे लोग जो चाहते हैं आज के लिए क्या सोच के यहाँ से जाना चाहिए. आपने जो बताया स्केल, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस, एक छोटा सा कंफ्यूजन भी है कि सर्विस से मैं स्टार्ट तो करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट को कब बदलना है मुझे. मतलब सर्विस से प्रोडक्ट को जाऊं, नहीं तो सर्विस स्टार्ट करके सर्विस में ही रहूं, प्रोडक्ट को रख के प्रोडक्ट में ही जाऊं. तो ये कंफ्यूजन थोड़ा अगर क्लियर कर देते तो बहुत अलग. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. पहला बात है विजेंद्र जी, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आप जिस तरह से इतने 3 मिनट में समरी किया पूरा चीज का, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है. एंड सिंपल लैंग्वेज में किया, मतलब ऐसा नहीं कि जार्गन यूज किया कुछ. मैंने भी कोशिश थैंक यू की सर. जार्गन कम करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 तो होता ही है. सो हाँ. अभी अभी मैंने ज्योत्सना मैडम को और सान्याल साहब को, जो यूथ एड फाउंडेशन के COO और CEO है, और फाउंडर मैथ्यू सर को, तीनों को मैंने मेरा PPT और एक एडिशनल वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दिया मैंने अभी अभी. तो मुझे कोई बढ़िया. तकलीफ नहीं है, मैं खुश होऊंगा अगर यहाँ उपस्थित
152 लोग सबको ये प्रोडक्ट मिले, सॉरी ये डॉक्यूमेंट्स मिले, मुझे PPT. कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट में जाना है या सर्विस जाना है, ये पर्सनल चॉइस है। हमने कंपैरेटिव स्टडी दिया है बट पर्सनल चॉइस है। दूसरा पॉइंट है कि सर्विस से भी प्रोडक्ट में जाया जा सकता है। जैसा मैंने बताया था, मैं अगर घर घर जाके ब्यूटिशियन का काम करता हूँ, वो सर्विस है। और मैं जब उस सर्विस को सिस्टमेटिक एसओपी बनाकर 4 आदमी को ट्रेन, 4 लड़की लड़कों को ट्रेन करके एक दुकान का सैलून बनाता हूँ, तो प्रोडक्टिवाइज सर्विस हो गया। प्रोडक्ट में बन गया, थोड़ा सा आधा प्रोडक्ट बन गया। वो प्रोडक्टिवाइज सर्विस माने मैं ना भी रहूं तो काम चालू हो सकता है। कवल सर्विस है, जब मैं रहूंगा तो तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मैं ना भी रहूं तो काम चालू हो सकता है, चालू चल सकता है। सो देन इट बिकम्स अ प्रोडक्टिवाइज सर्विस। फॉर एग्जाम्पल यूथ एड फाउंडेशन, एग्जाम्पल देके बोलता हूँ। यूथ एड फाउंडेशन सारे देश के करीबन 20 राज्यों में अभी थोड़े थोड़े माने छोटे छोटे टीम्स में लोगों को ट्रेन करते हैं कैसे बिजनेस शुरू करना है। तो ये शुरू जब हुआ था तब पुणे से हुआ था, तो थोड़े लोगों से हुआ था। तब भी तो शायद ज्योत्सना तब थी भी नहीं, शायद उस समय में, आई डोंट नो, और लोग भी थे उसमें। बट उसमें उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ट्रेनिंग में पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, पहला 2 घंटा ये, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर दूसरा दिन में ये प्रैक्टिकल, ये इतने टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम जाएंगे या सर्विस में जाएंगे, ऐसा करके एक सिस्टम बनाया। अब उस सिस्टम के बेसिस पे 20 स्टेट्स में ट्रेनिंग हो रहा है। अभी मेरा कलकत्ते का, बंगाल का हेड जीनियस है, अब यहाँ पे वो ट्रेनिंग करेगा। तो उसमें अगर सान्याल साहब ना भी रहे, ज्योत्सना ना भी रहे, तो भी वो कर पाएगा, क्योंकि देयर इज एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो वो सर्विस जो ट्रेनिंग था एंटरप्रेन्योरशिप का, वो सर्विस प्रोडक्टिवाइज्ड हो गया, मतलब एक प्रोडक्ट जैसा बन गया। तो वो कोशिश करना है कि मैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपका सर्विस, तो आपके बाद कहीं नहीं जाता है, होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको उसलिए आपको सिस्टमेटिक बना के प्रोडक्टिवाइज करना है, करके काफी लोगों में ले जाना है। मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट सान्याल जी एंड ज्योत्सना जी हियर, कि इस बार 20 स्टेट्स में YAF का स्टेट लेवल समिट हुआ है। पर कभी 20 हुआ ही नहीं, इसके पहले आई थिंक 12 या 10 हुआ था। 20 स्टेट में हुआ है। और इस बार पहली बार फॉरेन के स्पीकर्स आ रहे हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का नेटवर्क है, वहां से लोग आ रहे हैं हैदराबाद में। तो तुम्हारा काम इतना बड़ा हुआ कि अब US से लोग अपने खर्चे में, UK से लोग अपने खर्चे में आ रहे हैं तुम्हारे प्रोग्राम में मिल। दिस इज हाउ सर्विस बिकम्स बिग। आपने 5 आदमी, 10 आदमी, 5,000, 10,000 करके 25,000 का ट्रेनिंग किया। फिर उनमें से 10-20 बिजनेस करते करते 8,000 लोग या 9,000 लोग बिजनेस किए। अब उनको फिर आप एक छट्टे में ला रहे हो, यूथ एड एंटरप्रेन्योरशिप फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर में ला रहे हो। मतलब आगे और सर्विस दोगे, उनको मार्केट दोगे, उनके लिए दुकानें बना दोगे, उनके लिए ऑनलाइन में मार्केट दोगे, जो ई कॉमर्स बोलते हैं। ऐसे करके आप आगे ले जाओगे। दिस इज एक ट्रेनिंग जो किसी समय मैथ्यू ने शुरू किया होगा, वो एक ट्रेनिंग एक प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्टिवाइज सर्विस बन गया। आई रियली अप्रिशिएट, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, क्योंकि इसी ने आप लोगों को बुलाया है ना, इसी के संदर्भ में आए ना। आज देखो तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना इनोवेशन सेंटर, आई थिंक TGI गवर्नमेंट का, वो पार्टनर हो गया प्रोग्राम में। बड़ी बात है। इसके पहले यस समिट में गवर्नमेंट पार्टनर्स मैंने खास देखा नहीं। यूनिवर्सिटी पार्टनर था, मेरा एक यूनिवर्सिटी में प्रोविसी था एडमस में, वो भी पार्टनर था। एक प्रोग्राम तो वहीं पे हुआ है। पिछली बार तो मैं बैंगलोर में था, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पार्टनर था। इस बार गवर्नमेंट पार्टनर है, गवर्नमेंट होस्ट कर रहा है। अब इसके पहले महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सपोर्ट से हम लोग 30, ये आप लोग का यस यूथ एड फेडरेशन फाउंडेशन, उद्यमिता यात्रा। हाँ उद्यमिता यात्रा, राइट। 30 डिस्ट्रिक्ट में चला गया था उद्यमिता यात्रा, एक बस जिसमें पूरा, उसमें एग्जीबिशन और उद्यमिता के बारे में मराठी में लिख के, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिख के, पूरा महाराष्ट्र 30 डिस्ट्रिक्ट्स, अंदर अंदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ये वो, यवतमाल, गढ़चिरौली, हर जगह में गए। दिस इज प्रोडक्टिवाइज सर्विस। जब आप प्रोडक्ट को सर्विस में, सर्विस को प्रोडक्ट में बदल देते हो ऑलमोस्ट। तो ये एक हुआ। इसके बाद तो मैंने एग्जांपल दिया ही है, वो हबीब भाई का नाम विजेंद्र जी ने याद दिलाया था। तो हबीब का सलून अब सारे देश में आ गया। इतना सलून है कि हबीब खुद ही नहीं गया, एक बार भी नहीं गया सलून में, खुद ही नहीं गया। लेकिन जिसका मैनुअल है, उसको पढ़ के, देख के, ट्रेनिंग करके, फ्रेंचाइजी फी के बेसिस पे चल रहा है। मैं नेपाल में जाके यूरो किड्स देखा, जी यूरो किड्स।
अरुणाचल में जाके जी यूरो किड्स देखा है, मैं बांग्लादेश में जी यूरो किड्स देखा है, श्रीलंका में जी यूरो किड्स देखा है। किसने शुरू किया? इंडिया से शुरू हुआ। जीटीवी उसका अभी मैंने ओनर हो गया है। यूरो किड्स हर जगह में देखा मैंने। तो यानी मतलब क्या, वो तो सर्विस ही है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का। तो वो अभी प्रोडक्टिवाइज हो गया, चारों तरफ चला गया। उसी तरह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो आपको एक जगह से ही शुरू करना पड़ेगा शुरू में, अगर आप बिजनेसमैन खुद कर रहे हो तो प्रोडक्ट में दो तीन चीजें, बड़े बड़े आपने पार्ट्स बना रहे हो। जैसा मैंने पुणे में देखा, टाटा स्टील का, टाटा मोटर्स का गाड़ी के पार्ट्स पुणे का एक फैक्ट्री में बनता है। तो वो सिर्फ टाटा मोटर्स को एक्सक्लूसिव टाई अप एक्सक्लूसिव, तो वो फैक्ट्री कोई इंडिविजुअल चला रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इससे बोलना भी चाहता हूँ, उस फैक्ट्री में जिन लोगों का जिंदगी में लेप्रोसी हुआ है, हाथ ऐसा हो गया, पैर ऐसा हो गया, उन लोग को एम्प्लॉय किया है, उनको ट्रेनिंग दिया है। औरत भी है, मर्द भी है, एजेड भी है, थोड़ा यंग भी है, उनको ट्रेनिंग दिया है। और उनके सीनियर्स में कुछ कुछ नॉन मतलब नॉन लेप्रोसी लोग हैं, वो ट्रेंड सॉरी वो क्योर्ड हो गए हैं, उनकी बीमारी नहीं है। लेकिन वो लोग, बहुत अच्छा काम है, टाटा ने उसको उन लोग से पूरा सारा सामान टाटा मोटर्स ले लेता है। तो वो भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट का एक ही क्लाइंट है। अभी ये अगर 10 कंपनी को देता होता तो और भी बड़ा बिजनेस हो सकता है। उसने एक्सक्लूसिव राइट दिया तो दाम ज्यादा, पैसा अच्छा दे रहा होगा। लेकिन ये भी कर सकता है कि कभी कोई कि हम 10 जन को देते हैं। तो ये प्रोडक्ट B2B है, मतलब कोई डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद नहीं रहा है, बड़ी कंपनी खरीद रही है। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और एक प्रोडक्ट जो आप लोग नॉर्मली करते हो, साबुन, अगरबत्ती, खाने पीने का सामान, ये सब ये B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि आपको छोटा बैच बना के थोड़ा उसके बाद बड़ा करना है, थोड़ा मार्केट समझ के। क्योंकि इन्वेंट्री में सामान फेंक के नहीं रखने का है। सामान फेंक के रखोगे तुम्हारा सारा प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं करने का। बट आप लोग, अधिकतर लोग मैं जानता हूँ, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हो, और इसके अलावा आप लोग वो बनाते हो, क्या कहते हैं, सर्विसेज देते हो, ब्यूटिशियन सर्विस और ये सर्विस, परफेक्ट। और प्रोडक्ट भी बनाओ तो अपने इमीडिएट सर्कल के मार्केट फिर धीरे धीरे करो। और यूथ एड एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में अगर 5,000, मैं एग्जांपल देके बताऊं, अगर इसमें 5,000 मेंबर, अभी ऑलरेडी शायद 300-400 मेंबर हो गया है, 5,000 मेंबर होता है ना, जो साबुन बना रहा है 15 आदमी है या 50 आदमी है, उसका पूरा मार्केट ये 5,000 खा लेगा, यही 5,000 ले लेगा। जो 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 आदमी सर्विस देता है ऑडिटिंग का, अकाउंट्स का ऑडिटिंग, वो ऑडिटिंग 5,000 का सर्विस उसमें आ जाएगा। सो यू आर योरसेल्फ ए मार्केट, पहले ये समझो, यू आर योरसेल्फ ए मार्केट, एंड देन यू ईच वन एक मार्केट क्रिएट करता है, ईच वन एक मार्केट। तो ये 5,000 आदमी 20 स्टेट से है, 20 स्टेट में एक साल में एक एक वो फेस्टिवल टाइम में कभी एक एक करके एग्जीबिशन करो, बड़ी बात है, उसमें मार्केट आएगा। ये 5,000 आदमी अपने अपने, किसी में 500 लोग हैं, किसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में एक एक शोरूम करो, जिस शोरूम में सबका सामान रखो। एक आदमी को दुकान बनाने में बहुत तकलीफ है, लेकिन अगर 50 छोटा बिजनेसमैन आके एक दुकान बनाता है तो इजी है। अब झगड़ा करोगे तो झगड़ा नहीं करने के लिए येफी को ले आओ, येफी को बीच में रख दो, वो तो कम ऑर्गेनाइजेशन है, तो येफी अपने आदमी लगाकर, मैनेजर लगाकर कमी पड़ेगा, बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। तो इससे भी अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हो। तो बस थैंक यू सर। जो दिमाग में आया मैंने बताया, दैट्स ऑल। नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपने जिस तरह का एग्जांपल्स दिए हैं ना, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सो मच सान्याल सर, सर, आपका टाइम का। एक मिनट सर, सान्याल सर बोले पिछले साल केवल 7 स्टेट्स था जहां पे स्टेट का ये समिट हुआ, इस बार 20 स्टेट हुआ है। रियली सैल्यूट टू द टीम जो 7 से 20 तक जा पाया। 7 to 23 टाइम्स होता है एक साल में। सोचो अगले बार भारत में 26 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, 33 के 33 में करो, अगले बार 33 के 33 में करो। इस बार हो जाएगा हैदराबाद मेरे में ख्याल से। पिछले बार 350 लोग आए थे, क्राइस्ट कॉलेज में 350 या 400। इस बार हैदराबाद में 700 लोग आओ, 700, 600, 700 लोग आओ। ये आना जरूरी है, दूसरा को देखना जरूरी है। आप विजेंद्र जी को बात सुने हो, सामने मिलना जरूरी है, सामने मिलके बात करना जरूरी है। जितना सामने लोगों से मिलोगे, जितना अपना फ्रेटर्निटी को बनाओगे, जितना एक दूसरे से दोस्ती करोगे, और देखोगे सबका सपना एक ही है, बांग्ला बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, तमिल बोलने वाला, सबका सपना, तेलुगु बोलने वाला, सबका सपना एक ही है, सबकी तकलीफें भी एक ही है। तो उससे शेयरिंग होता है, केयरिंग होता है, बहुत हिम्मत बढ़ता है। एक की गलती दूसरा को बताता है तो वो गलती नहीं करता है। इस तरह की चीजें होती है। कंपटीशन मत करो,
कंपटीशन गंदी आदत है। वो एक बात दिमाग में बचपन से बैठा दिया है, भाई बहन में कंपटीशन कराता है, आसपास के बच्चों से कराता है, क्लास में, स्कूल में, बड़े होकर स्टाफ के साथ। एक ऑफिस में 10 आदमी काम करता है, 10 कंपटीशन, बहुत गंदा चीज है। एक दूसरे का कोलैबोरेटर बन जाओ। 7 देशों ने वैक्सीन बनाया, 240 देशों ने वैक्सीन यूज किया। कंपटीशन करने से होता ही है। कोलैबोरेशन इज द ओनली थिंग। और ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, वो एक दूसरे का प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक दूसरे का कोलैबोरेटर है, एक दूसरे को मदद करने का। एक ही प्रोडक्ट बनाओ तो भी कोलैबोरेटर है, तो भी कोलैबोरेटर है। सिर्फ अगरबत्ती की दुकान बनाओ जिसमें 20 अगरबत्ती बनाने वाले ने रखा है, सारा शहर उसमें अगरबत्ती लेने आए तो सबका बिकेगा ना, सबका बिकेगा ना। कोलैबोरेटर बनो। कोलैबोरेटर से बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत हिम्मत मिलता है, बहुत मार्केट मिलता है, एक दूसरे का सपोर्ट। देखो, जैन कम्युनिटी का ऑल इंडिया जैन एसोसिएशन है, वो एक बिजनेसमैन गिर जाता है ना, 10 जैन उसको सपोर्ट करते हैं बड़ा करने के लिए। फिर से मैं कलकत्ता में मारवाड़ियों में देखा है, मैं कुछ कागज पच्ची नहीं है, ऐसे 2 लाख रुपए 2 करोड़ रुपया दे दिया बिजनेस में, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि जब ये कमाएगा वापस भी देके जाएगा। उनको मालूम है विथ इंटरेस्ट देके जाएगा, क्योंकि और 10 आदमी को हेल्प करना है। ये चीज को आप बिना धर्म का, बिना लैंग्वेज का, जो छोटे बिजनेसमैन है, इसकी जो कम्युनिटी बन रही है येफी, इसके अंदर ये चीज को लाओ, एक दूसरे को मदद करने का, एक दूसरे का मार्केट खड़ा करने का। नहीं तो फिर एक अकेले अकेले घुट घुट के लड़ते रहोगे, आधे टाइम मरते रहोगे, आधे टाइम फ्रस्ट्रेट होगे, नहीं करने का है। जब दूसरों को सक्सेसफुल होते देखोगे, अपने अंदर हिम्मत आएगा। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशन से बोला, लेकिन आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दैट यू आर योर ओन स्ट्रेंथ। यू डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, डोंट डिपेंड ऑन बिग पीपल गिविंग यू मनी। जो दे रहा है वो लेने के लिए भी आ जाएगा, जबरदस्त। एक दूसरे का मदद कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, सॉरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छा चीज बोले लास्ट में, द कोलैबोरेशन इज एवरीथिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और सबको इसी तरह से मतलब कोलैबोरेट करके, मतलब अभी जैसे सर ने बताया, कोलैबोरेशन जितना हो सकता है वैसा करके कुछ आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑर्गेनाइजिंग टीम, ज्योत्सना मैडम और सनियल सर, and thank you, special thank you for all the Kishori, participants. And there then is Kishori there, वो भी है, Genius, they are all organizing team. Yeah, I'll just request everyone to on the video till Vijender sir ji is speaking. We'll take the screenshot fast. हाँ, सब लोग है ना, जितने लोग आओ वीडियो में आ जाओ, सब देखते हैं एक दूसरे को, हम लोग फोटो भी लेते हैं, फिर ये रिपोर्ट भी होगा। मेरा आज टेक अवे 2-3 चीजें है सर। बोलो एक, बोलो। सेलिब्रेट करो, सोच समझ के रिस्क ले लो, और कोलैबोरेट करो। एकदम करेक्ट, एकदम, थैंक यू। ये 3 चीजें मुझे आज घर लेके जा रहा हूँ, और सबको भी ऐसा ही करना। और थैंक यू, स्पेशल थैंक्स फॉर यू सर, प्रोफेसर सर। इट वाज वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इवन though you are traveling everywhere. A very thankful session for this. I think कृणाल, we have कृणाल few more मैंने questions, पीपीटी we'll दे come दिया, back. कृणाल मैंने पीपीटी दे दिया ऑलरेडी। Yeah, सर, yeah. ये बोल रहे हैं ना, इसलिए बोला मैंने। हाँ जी सर, बोलो, कंक्लूड करो, चलो। हो गया सर, that's all. I think I have done 2 times conclusion. It's okay, good fun. बट Thank you. सबको हैदराबाद में मिलने का है। आप हैदराबाद में रहते हो ना विजेंद्र सर? Yes sir. तो I मिलेंगे, stand. आप तो आओगे ही, लेकिन जरूर। सब लोग आओ हैदराबाद में। हैदराबाद में अपना सामान जिसका भी जो भी है वो थोड़ा थोड़ा लेके आओ, वहां पे Yeah. सेल भी करो। उसमें देखा मैंने लास्ट टाइम, मैं खुद ही 3,000 रुपये, 3,500 रुपये का सामान लिया था। उसमें क्या बोलता है, सारंग। बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, वो जो फ्रेग्रेंस, साबुन, कितने अच्छे अच्छे फूड आइटम्स, बहुत सारा था। तो आओ, सब सामान भी लेके आओ, दूसरों का सामान देखो। अपना बेचना ठीक है, लेकिन दूसरों का देखो, दूसरों का भी समझो, और एक दूसरे को हेल्प करो, मदद करो, दोस्ती करो। खुद ही मार्केट हो, हम लोग खुद ही अब बड़ा मार्केट है। सान्याल जी का तो सपना है कि आप सब जो लोग ईएफई में आओगे, उनका और यूथ एड फाउंडेशन मिला के टोटल 1,000 करोड़ का टर्नओवर करना है 2030 में, 5 साल में। अगर 1,000 करोड़ का हो टर्नओवर होता है, अब ये सीरियस पॉइंट है, हाँ, मजाक नहीं है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर होता है तो आपको इकोनॉमिक्स के रूल के हिसाब से आपका वैल्यूएशन 10,000 करोड़, 10x होता है। एबिटा 1,000 करोड़ है, एबिटा अभी डिटेल नहीं बता रहे, मतलब बेसिकली टर्नओवर उसका 10 टाइम्स
10,000, अगर सोशल वर्क है तो 10 टाइम्स, कमर्शियल वर्क है तो 20 टाइम्स। सो 1,000 करोड़ का 10,000 करोड़ होता है, 10,000 करोड़ $1 बिलियन वैल्यूएशन है, $1 बिलियन होता है तो यूनिकॉर्न माना जाता है, सोशल यूनिकॉर्न। सोशल यूनिकॉर्न होगा तो वर्ल्ड हेल्थ सॉरी क्या बोलते हैं, IMF के से लेकर, हाँ वो ILO का, IMF का, उनका भी सपोर्ट मिलता है, और गवर्नमेंट और बैंक का भी सपोर्ट बहुत होता है। तो टोटल चीज ही बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो 10,000 करोड़ और यूनिकॉर्न होता है तो हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में यूथ एड फाउंडेशन का एक शोरूम हो सकता है, सारे यूथ एड के मेंबर्स वहां के सामान वहां पे आ सकता है। कई और चीज हो सकता है जो अभी हम यहाँ बैठ के 10 मिनट में नहीं बात कर सकते, लेकिन पॉइंट है कि उस सपना जो सान्याल साहब देखते हैं, मैथ्यू साहब देखते हैं, वो ज्योत्सना जी देखते हैं, उस सपने को फुलफिल करो, सब लोग मिलके, खुद ही बड़ा हो और साथ वालों को भी बड़ा करो। थैंक यू, बाय बाय। Thank you. Thank you. Bye bye everyone. See you Kangam, Bye tomorrow. bye. where are you from, Kangam? Thank Which, you. which district are you from? I think he is from Arunachal, huh? Thank you, sir. I'm Bye. also sharing feedback form in group. Please respond. Thank Okay. you, sir. Thank you Thank very much. you. Bye bye, sir. Thank you so much. Bye, Jyotsna. Bye bye bye. Thank you. Thank you so much, sir.